بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ہم نے ناول شروع کرنا ہے اس کا نام ہے دل دریا کے بیچ بائے مریم۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ تم بھی جانا کمال کرتے ہو، کیسے کیسے سوال کرتے ہو، خود ڈبو کر تم اپنی کشتی کو بے وجہ اب ملال کرتے ہو۔ اجنبی راستے انجان ہم سفر کے ہمراہ کسی قطعی غیر شناسا منزل کی سمت رواں تھے۔ اس کی نظریں مضطربانہ انداز میں جتنی بار بھی اٹھیں، بے بسی کے شدید احساس سمیت بے دلی سے جھک گئیں۔ حقیقت کی صفاقی کا احساس اس کے رگ و جان میں زہر بھر رہا تھا۔ دل اس قدر وحشت زدہ ہوا کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز پر ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے معیز نے پلٹ کر دیکھا تھا اور نگاہیں اس حسن کی تابانی سے جیسے خیرہ ہو گئیں۔ آف وائٹ دوپٹے کے حصار میں آنسوؤں اور غم کی شدتوں سے اٹھا وہ ہوش ربا چہرہ گویا پورے ماحول پر چھا رہا تھا۔ اس کا دل فریق ثانی کی کیفیت سے لاتعلق انوکھے خار میں ڈوبنے لگا۔ کس درجہ مہربانی قدرت کی کہ بیٹھے بٹھائے وہ یوں نوازا گیا تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ حیران رہ گیا تھا۔ زینب کی اماں بیمار تھیں۔ بیماری سے مایوس ہو کر ہی انہوں نے اماں کو بلایا تھا، اور پھر اچانک وہ فیصلہ ہو گیا جس نے معیز کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ زینب کی ماں بستر مرگ پر ہے، اس فرض کی ادائیگی کے انتظار میں سانسیں پوری کر رہی تھی۔ مطمئن ہوتے ہی آنکھیں موند لیں۔ ان کا تھا ہی کون جو دور پرے کے عزیز تھے۔ وہ سوئم ہوتے ہی گھروں کو سدھار گئے۔ تب اماں نے بھی غم سے بے حال زینب کے ساتھ گاؤں واپسی کا قصد کیا۔ معیز کو اسے دیکھنے کا پہلا اتفاق اس کی اماں کے جنازے پر ہی ہوا تھا۔ ان کی موت پر سب سے زیادہ بلکنے والی وہی تو تھی۔ نازک اندام اس قدر حسین کہ پہلی نگاہ ڈال کر ہٹانا بھول گیا تھا۔ جس دم گاڑی جھٹکے سے گھر کے سامنے رکی، اس کا وجود سفر کی تھکان اور نیند کے احساس سے ٹوٹ رہا تھا۔ اماں نے اسے باقاعدہ سہارا دے کر گاڑی سے اترنے میں مدد دی، جبکہ معیز ڈگی سے سامان نکال رہا تھا جس پر زینب کے ہی 2 عدد سوٹ کیس اور بیگ شامل تھا۔ اماں نے چونکہ کسی کو خبر نہ دی تھی، جبھی زینب کو ان کے ساتھ دیکھ کر سبھی حیران چہروں پر ان گنت سوال لیے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ وجہ زیبی کی ان سب سے مکمل طور پر غیر شناسائیت اور اجنبیت کہ دونوں گھرانوں کے بچوں میں کبھی ملاقات ہی نہ ہو پائی تھی۔ یہ کون ہے اماں؟ عائشہ باقی سب کی طرح اپنا تجسس چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ زینب کی مرمری کلائی تھام کر نزاکت اور گداز کو محسوس کرتی تحیر آمیز اشتیاق سے پوچھ بیٹھی تو اماں کے چہرے پر مسکراہٹ سورج کی پہلی کرن بن کر چمکی۔ یہ تمہارے افضل ماموں کی دھی ہے پتر۔ انہوں نے زینب کے جھکے سر پر ہاتھ رکھ کے ادھورا سا تعارف کروایا تو معیز جو تعارف کے مرحلے کو شروع ہوتا دیکھ کر کانشیس ہو چکا تھا، اپنی جگہ جزبز ہو کر رہ گیا۔ افضل ماموں کو تو گزرے بھی اتنا عرصہ ہو گیا، مگر یہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئی۔ عائشہ کی الجھن پوری طرح نہیں سلجھی تھی۔ اب تو آ گئی ہے نا، ہم اسے تیری بھرجائی بنا کر یہاں لے آئے ہیں۔ اماں نے بالکل اچانک انکشاف کیا تو عائشہ کے ساتھ ساتھ بھابوں کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ معیز ان کی کیفیت سے حظ اٹھاتا ہوا طمانینت بھرے انداز میں زیر لب مسکراتا رہا۔ زینب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کتنے ہی آنسو گرتے گود میں رکھے ہاتھ کو بھگو گئے۔ اپنی بیچارگی اور بے بسی کا احساس ایک بار پھر اسے درد کے سمندر میں ڈبونے کے درپے تھا۔ میاں جی آ گئے تمہارے؟ اماں اٹھتے ہوئے بولی تو امی تو اسی وقت میاں جی کھنکارتے ہوئے اندر چلے آئے۔ سلام میاں جی۔ کئی مختلف آوازیں تھیں جن میں سب سے زیادہ واضح اور بھاری آواز معیز کی ہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان سے گلے ملا تھا، پھر ان کی نگاہ زینب پر پڑی تو انہوں نے اماں کے چہرے کی جانب دیکھا۔ رکیں بتاتی ہوں، وہاں رسوئی میں چل کر، ٹھنڈ بھی تو بہت بڑھ گئی ہے۔ اماں گھٹنوں پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر رکتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں، پھر کچھ خیال آتے ہی پلٹی تھیں اور مڑ کر عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ پتر تو ذرا بہن کا خیال رکھ اور یہیں تم ذرا کھانے پینے کا کچھ کرو، اور معیز تو چل اپنے کمرے میں، تیرا کھانا وہیں پہنچ جائے گا، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی بہن آمنہ کے 40ویں کے بعد ہوگی۔ انہوں نے جیسے اسے بہت کچھ بتایا تھا۔ میاں جی تو کب کے رسوئی جا چکے تھے۔ معیز خجالت آمیز انداز میں نظریں چراتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کہاں ہے یہ معیز کا بچہ؟ ذرا بلواؤ اسے۔ کیسے چپ چاپ اتنی حسین دلہن اڑا لایا؟ اگر وہ یہ سوچے بیٹھا ہے کہ اس طرح نیک سے جان چھوٹ جائے گی تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپا جو اسی گاؤں میں تایا کے گھر بیاہی تھیں، اس اطلاع کو پاتے ہی اگلے دن 3 عدد بچوں سمیت موجود تھیں۔ زینب کو دیکھا تو بے ساختہ ہنس پڑی۔ میں بھی کہوں یہ اپنا معیز کیسے اتنی جلدی مان گیا؟ اس کا بے داغ شعائیں بکھیرتا روپ دیکھتی وہ یوں ہنستے ہوئے بولی تھیں، ویسے وہ خوش تو ہے نا؟ ایسا ویسا اس کا تو جینا چاہ رہا تھا جانے کو بھی۔ سوال عائشہ سے ہوا تھا مگر جواب بھابوں کی طرف سے موصول ہوا، جو شوخی اور شرارت سے بھرپور تھا۔
आपा इस जवाब से मुतमईन सी हो गईं और उठकर बाहर आ गईं, जहां ज़ैनब चारपाई पर बैठी खाली खाली नजरों से खलाओं में जाने क्या तलाश कर रही थी। भरजाई, बहुत उदास हो? आयशा ने उसके शानों पर हाथ रखते हुए नरमी और मोहब्बत से पुकारा तो ज़ैनब चौंके बिना उसे देखकर ठंडा सांस भरकर रह गई। तुम तो उम्र में मुझसे बहुत ही छोटी लगती हो, लेकिन रिश्ता बड़ा बन गया है। जब भी मैं तुम्हें भरजाई ही कहूंगी। पता है, वीर मुझसे 7-8 साल बड़ा है। उसके जिक्र के साथ ही ज़ैनब को हलक में कड़वाहट घुलती महसूस हुई। मैं तुम्हें वीर के मुतल्लिक कुछ बताती हूँ, जाहिर है तुम्हें जानने का शौक तो होगा, वो पुरशौक लहजे में बोली तो ज़ैनब के चेहरे पर फैली बेजारी और बढ़ गई। दिल चाहा लिहाज बलाए ताक रखकर साफ कह दे, मुझे बिल्कुल शौक नहीं। बराहे करम तुम अपना और मेरा वक्त जाया ना करो। मगर होंठ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त रहे। जब भी आयशा उसकी सोचों से बेखबर बोलने लगी। वीर शहर में रहता है, वहीं काम भी करता है, पढ़ा भी वहीं है। मैं छोटी सी थी जब उसे शहर से पिंड और पिंड से शहर आते जाते देख रही हूँ, मगर इसके बावजूद हम सब में मिसाली मोहब्बत और जहनी हम आहंगी है। क्या करता होगा वो शहर में? ज्यादा से ज्यादा कहीं सेल्समैन लगा हुआ होगा। घर की हालत से ही हालात का पता चलता है। उसने तायराना निगाह इतराफ में डालकर जहर खून से सोचा और खुद तरसी का शिकार होने लगी। काश मेरे साथ ये सब ना हुआ होता। अम्मी इतनी जल्दी ना मचाती तो आज उसकी बजाय शुजा मेरे साथ होता। उसके गले में आंसुओं का फंदा लग गया। कैसे भूल जाती वो सब, जब अम्मी ने अचानक उस पर सितम तोड़ा था। उसे तो आखिरी वक्त तक खबर ना हो सकी थी। वो तो अम्मा की बिगड़ती हालत से घबरा कर दूसरे कमरे में गई थी कि भूपी कनीज कुछ ही देर बाद उसके पीछे चली आई। पुत्र, सर अच्छी तरह ढांप ले, काजी साहब आ रहे हैं। उन्होंने आते ही कहा था, और सिर्फ कहा ही नहीं, खुद बढ़कर उसका दुपट्टा खोलकर इस तरह से फैलाकर चेहरे के आगे तक खींचकर घूंघट सा निकाल दिया। वो संभली भी ना थी कि चंद एक अशखास के साथ काजी साहब चले आए। किसी अनहोनी का एहसास उसकी धड़कनों में सरकश भंवर डालता उसे भुनचक्का कर गया। एजाबो कबूल के मराहिल से गुजरकर वो हैरत और सदमे की ज्यादती से गंग हो गई। इतना वक्त भी कहाँ मिला था कि वो अपना दिफा ही कर सकती। उसके बाद अम्मी की दायमी जुदाई ने जैसे उसके रहे सहे हवास भी छीन लिए और अब वो यहाँ किसी परिंदे की तरह पिंजरे में कैद फड़फड़ा रही थी। बेबसी सी बेबसी थी। शुजा को भूलना जिस कदर मुश्किल था, इस अनजान शख्स से समझौता करना उस कदर दुश्वार। उसे अपना आप ऐसी चिड़िया की तरह महसूस हो रहा था जिसके पर काटकर तारीख कोठरी में डाल दिया गया हो, जहाँ उसे सवाई सिसकने और बेबसी से फड़फड़ाने के और कुछ भी करने पर कुदरत ना हो। इंटर के एग्जाम्स के बाद वो रिजल्ट के इंतजार में थी जब अम्मी को इंजाइना का अटैक हुआ और साथ ही उनका आधा धड़ भी मफलूज हो गया। एक अवतार थी जो अचानक उस पर टूटी थी। बाबा को तो उसने अपने बचपन में ही खुद से बिछड़ते देखा था। उनका था ही कौन जो अजीज रिश्तेदार थे। उस कटन मरहले पर उन्होंने भी लाताल्लुकी और बेनियाजी की चादर ओढ़ ली। गुजर औकात पहले अम्मी की सिलाई कढ़ाई से होती थी। वो भी जरिया उनकी बीमारी की वजह से जाता रहा तो मजबूरन उसे घर से निकलना पड़ा कि आजमाइश का दौर जाने कब तक रहना था। तालीम अधूरी छोड़कर उसे जॉब के हसूल के लिए दर दर के धक्के खाने पड़े। तालीम वाजबी थी तो शक्ल सूरत शहजादियों जैसी, और बाहर की दुनिया तो हवस परस्त गधों से भरी पड़ी है। वो बहुत जल्द हिम्मत हार बैठी। ऐसे में कुदरत को उस पर रहम आया था कि घर से करीबी स्कूल में उर्दू की टीचर की शादी हो जाने पर उसकी रोजी का जरिया खुल गया हो। यूं स्कूल के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियां उस पर आ पड़ी तो सही मायनों में वो घन चक्कर बनकर रह गई। सायरा से उसकी जान पहचान से दोस्ती का मरहला वहीं तय हुआ था। वो हंसमुख और जल्दी फ्रैक हो जाने वाली नेचर की लड़की जब दोस्ती की ख्वाहिश लिए उसकी जानी बढ़ी थी तो ज़ैनब जैसी रिजर्व लड़की भी जाने क्यों उसे दोस्ती कर बैठी थी। सायरा ने एक दिन हंसते हुए उसे बताया था कि उस दोस्ती की वजह सबसे ज्यादा उसका हुस्न था और दूसरी और अहम वजह उसका भाई था शुजा, जिसने स्कूल आते जाते ज़ैनब को देखा था तो पहली निगाह में दिल हार बैठा था। ज़ैनब को ये सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लगा था जब भी नागवारी के तासुर समेत वहां से उठ गई, मगर शुजा जैसा बावकार, खूबरू और पढ़ा लिखा नौजवान अपने अतवार के बायस जल्द ही उसके दिल में अहम मुकाम हासिल करने में कामयाब हो गया। वो सायरा को लेने आता था। आते जाते ज़ैनब का उससे अक्सर सामना हो जाता। उसकी नरम लो देती निगाहों का हिसार अपने गिर्द बनता महसूस करती तो जाने क्यों एक लतीफ सा एहसास उसको गुदगुदा जाता। सायरा की सालगिरह पर उसकी लाख धमकियों के बाद ही वो उसके घर गई थी और वहीं शुजा ने बहुत बावकार अंदाज में अपना हाले दिल उससे कह डाला था। वो जवाब का मुंतजिर था जो ज़ैनब फौरी नहीं दे पाई। शुजा ने 15 दिनों के इंतजार के बाद उसके सेल फोन पर राब्ता करके जवाब मांगा था और वो चुप की चुप रह गई। आप शायद मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हो। बाय गॉड, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को आपके यहाँ भेजने से कबल ही अपने बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ कि इसकी मेरे नज़दीक बहरहाल बहुत अहमियत है। वो किसी दर्जा एहतराम से बात कर रहा था। गंभीर खूबसूरत लहजा ज़ैनब के दिल के तारों को मुधर सुरों में छेड़ता चला गया था और वो कुछ इस दर्जा घबराई के जवाब में कुछ कहे बिना ही सिलसिला मुनक़ता कर डाला। शुजा के इस इज़हार ने उसकी बेरंग जिंदगी में हर सू गुलाब बखेर दिए थे। चाहे जाने का एहसास हमा वक्त उसके लबों पर मुस्कान सजाए रखता। अब जिंदगी अपने तमाम तर भोलपन समेत उसे बेहद अजीज हो चली थी। उसके बाद भी बारहा शुजा से उसका आमना सामना हुआ और उसकी बेताब निगाहें उस पर सवालिया अंदाज में उठती तो ज़ैनब की रंगत में गुलाबियां खिल
जाती और पलकें बारह हया से झुककर उठने से इनकारी हो जाती। उसका ये खामोश इकरार शुजा को मुतमईन और सरशार कर गया था। मगर उस रोज सायरा ने उसे घेर कर अपना मुद्दा बयान किया तो वो घबरा सी गई। हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं ज़ेबी, बताओ कब आएं? और ज़ैनब अम्मी की तन्हाई के ख्याल से उसे मना कर गई। यूं ही 1 साल रहता था। शुजा की चाहत में वो बहुत आगे तक जा निकली थी, इतना आगे जहां से वापसी नामुमकिन थी कि अचानक ही तकदीर के एक कारी वार ने उसे यहाँ ला पटका। भरजाई, तू फिर रो रही है? आयशा की आवाज उसे माजी की भूल भुलैयों से जबरदस्ती वापस घसीट लाई। उसे एहसास तक ना हो सका था कब आंखों से उमड़ता गर्म पानी गाल भिगोने के बाद गर्दन तक जा पहुंचा था। ज़ैनब ने लब काटते हुए कर्बनाक एहसास समेत अतराफ में निगाह दौड़ाई। शाम के साए तेजी से अंधेरों में मदगम होते जा रहे थे। शाम की ये उदास सी भोजल शाम रुखसत होते समय अपनी तमाम तर उदासी उसके अंदर भर गई। भरजाई, अंदर आ जा, मैंने तेरे लिए गुड़ के चावल पकाए हैं, वीर को बहुत पसंद हैं। आज सारा दिन कव्वा मुंडेर पर नहीं बोला, पर फिर भी मेरा जी गवाही दे रहा है वीर जरूर आएगा। वो चाहत भरे लहजे में गोया हुई थी और इस एक जिक्र के साथ ही ज़ैनब के अंदर जैसे अलाव दहक उठे। एहसासे ज़ियां तमाम तर महरूमी समेत रगो जाम में उतरा तो बेदर्दी से लब कुचलते हुए उसने तलक सच्चाई से वक्ती फरार चाहा, जो किसी तौर मुमकिन नजर न आया। आयशा, अंदर आ। भाभू की आवाज पर आयशा कलांचे भरती उसे वहीं छोड़कर रसोई में गायब हो गई। ज़ैनब ने गोद में रखे हाथों की यकबस्तगी को महसूस करते हुए आपस में रगड़कर गरमाइश देते हुए जैसे ही निगाह उठाई साकित रह गई। गरम मर्दाना ब्लू शलवार सूट में मैरून शॉल कंधों पर डाले, अपने नुमाया होते लंबे कद और शानदार मजबूत डेल डोल समेत सुथरी रंगत और गरूर का तासुर लिए तीखे खड़े नकूश समेत वो जो कोई भी था, आंखों में शौक का जहां आबाद किए बहुत गहरी नजरों समेत उसका सरतापा जायजा ले रहा था। सारे रस्ते दुआ मांगी थी, अल्लाह साईं आपकी एक झलक दिखला दे। खबर नहीं थी पहला सामना ही आपसे होगा। हल्की सी शरारत लिए गंभीर आवाज ज़ैनब को गड़बड़ा कर रख गई। हाय मैं मर जावा, मेरा वीर आ गया। देख भाभो, मैं कह रही थी ना, मेरा दिल गवाही देता है कि आज वीर जरूर ही आएगा। ज़ैनब जो उस अजनबी सूरत के मालिक शख्स के मुतल्लिक मुख्तलिफ क्यासराइयों में मसरूफ थी, आयशा की चहकती आवाज पर सुनो मन बैठी रह गई। ले, ये भी कोई बताने की बात है? हमें पता था देवर जी अब गांव के रस्तों को भुला नहीं सकेंगे। कशिश ही ऐसी है यहाँ। भाभो ज़ैनब पर शोक निगाह डालते हुए मुईज पर गिरफ्त कर गईं, जिसकी निगाहें बेताबाना अंदाज में ज़ैनब के भले चेहरे पर भटक रही थीं। इस बात पर दबी दबी मुस्कुराहट लबों की तराश पर आन ठहरी। लगता है ज़ैनब का तुझसे पर्दा करा देना चाहिए। जिस तरह तेरी नजरें उसे देखती हैं, शादी के दिन उसका सारा रंगो रूप चाट लेंगी। भाभो की इस बात पर मुईज ने बुरा सा मुंह बना लिया, जबकि ज़ैनब तेजी से उठकर कतरा कर निकलती चली गई। अब ऐसी भी बात नहीं है भाभो कि सिर्फ देखने से उसका रंगो रूप उड़ जाए। आपकी तरह शादी के 1 साल बाद ही बेचारे भा को भी पहचानने में दुश्वारी होने लगी थी। वो चिकना गड़ा था, बजाय शर्मिंदा होने के उन पर चोट की। भाभो के से आकर महज उसे घूर कर रह गई, फिर यही खिफत मिटाने की गर्ज से बोल उठी। हाँ तो बच्चों के बाद बहुत मुश्किल है पहले जैसा रहना। देखेंगे तेरी दुल्हन को, 1-2 बच्चे तो होने दो। उन्होंने हाथ नचाकर तानाजनी की तो मुईज झीम कर रह गया। ला हौला वला, बोलने से पहले कुछ तो ख्याल किया करें। वो खजारत भरे अंदाज में नजरें चुरा कर रह गया। मुईज उन्हें घूरता तेजी से अंदर चला गया। गाँव के रिवाज के मुताबिक नई नवेली दुल्हन को देखने गली मोहल्ले की खवातीन तकरीबन रोजाना ही चली आती। देखना एक को होता था, उसके साथ 2-4 वैसे ही शौक में उठकर साथ हो लेती। जब उसे अचानक शादी का सवाल उठता तो अम्मा पूरी तफसील सुनाने बैठ जाती। औरतें हमदर्दी और अफसोस के इजहार के साथ उसकी तारीफ व तौसीफ के साथ मुईज की किस्मत पर रश करना ना भूलती थीं। ऐसे समय ज़ैनब अपने जख्मी दिल से रस्ते खून समेत सड़क से वहां से हट जाती। वो इंतहाई यासियत में घिरती उठकर कमरे में आकर लेट गई। लिहाफ सर तक ताने, वो जलती आंखों पर हाथ रखे किस्मत की सितम जरीफी पर आंसू बहाती दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश में हलकान थी। गाँव की सर्दी की शिद्दत यूं भी उसकी तमाम तर बर्दाश्त को आजमाने के बाद उसे बुखार के तोहफे से नवाज चुकी थी। इस सर्दी के बायस वो मरने वाली हो रही थी। बुखार के साथ पिछले 4-5 दिनों से खांसी और जुकाम ने भी बुरी तरह जकड़ा हुआ था। ठीक कैसे होती? दवा तो खाने की बजाय वो आंख बचाकर बाथरूम में फेंक आती थी। मुईज से कहो अपने कमरे में आतिशदान बनवा ले, उसकी दुल्हन को सर्दी जो इतनी लगती है। भाभो आते जाते उस पर शौक फिक्रे उछालना नहीं भूलती। उसे देखते ही उनकी शरारत की रग फड़क जाती। कमरे की लाइट जली तो ज़ैनब ने सरद से चेहरे पर लहाफ खींच लिया। भरजाई उठ, वीर तुझे डॉक्टर के पास ले जाए। आयशा ने उसकी दहकती पेशानी छू कर कहा तो उसने लम्हे के 1000वें हिस्से में जवाब लौटा दिया। मुझे नहीं खानी दवाई, और इंजेक्शन से तो जान जाती है। प्लीज, निकाह ज़दा कपकपाती आवाज में उसका नाम सुनते ही वो इनकारी हो गई थी। तो अगर तू ठीक नहीं होगी तो रुखसत होकर देवर जी के कमरे को रौनक कैसे बख्शोगी? भाभो उसकी आवाज सुनकर चली आई थी। मुईज के मुतफक्कर चेहरे पर निगाह जमाकर टुकड़ा लगाया तो मुईज ठंडा सांस भर के यूं सर झटक कर रह गया, जैसे कह रहा हो कि आपका इलाज मुमकिन नहीं।
बहुत सर्दी लग रही है, मुझे बिल्कुल नहीं जाना, मर जाऊंगी। वह बाकायदा कांपते हुए गिड़गिड़ाई। भाभो ने दहलकर उसे टोका था। अरे अरे, ये मरने वरने की बात ना करो, हमारे देवर का दिल तो ना तोड़ो। ज़ैनब की निगाह उसी वक्त मुईज़ पर पड़ी तो भाभो की इस फुलझड़ी पर वो खिफ़्फ़त ज़दा और खजालत के साथ गम गुस्से समेत उन्हें देख रहा था। उनकी इस किस्म की छेड़छाड़ उसकी ज़ख्मी रूह पर ताज़ियाने की मानिंद ज़रबकारी करती थी, मगर वो उन्हें नहीं रोक सकती थी। ठीक है धीरानी, तू लेटी रह। मुईज़ पुत्र, तू डॉक्टर को घर ही ले आ। अम्मा ने पहले उसे तसल्ली से नवाजा, फिर पलटकर बिल्कुल खामोश खड़े मुईज़ को मुखातिब किया तो मुईज़ गहरा सांस भरता हुआ बोला, ठीक है अम्मा, कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, ज़रूरी लेकर आना, वरना ज़ैनब की रुखसती में ताख़ीर हुई तो ज़ाहिर है तुम्हें ही ये गवारा नहीं होगा। उसके पीछे से बाहर निकलकर भाभो ने उसके पीछे बाहर निकलकर शरारत से कहा तो वो कोई तासुर दिए बगैर तेजी से निकल गया। ज़ैनब की तबीयत उसके ना चाहते हुए भी संभल गई। इस बार तो मुईज़ आकर वापसी का रास्ता भूल गया था और यही बात ज़ैनब के लिए कुफ़्त और परेशानी का बाइस थी कि उसकी मौजूदगी पर वो ना सिर्फ खुद एक कमरे तक महदूद हो जाती, भाभो के शोको शंग जुमलों की बौछार में वो आ गई थी जो तकरीबन उसकी कुव्वते बर्दाश्त से परे थे। उस रोज़ आम रूटीन से भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था। सारा दिन धुंध की दबेज चादर छाई रही। यही वजह थी कि रात का अंधेरा अभी वक्त से पहले धरती पर अपना तसल्लुत जमा कर बैठ गया था। खाने के बाद सभी अपने ठिकानों पर आराम की कर से चले गए। उसके पहलुओं में दोनों चारपाइयों पर आयशा और सादिया महवे ख्वाब थीं। बस एक वही थी जिसकी आंखें नींद के एहसास से हनूज दूर थीं। ऐसे में कई बार जी में आई बैग में रखा सेलफोन उठाकर शुजा से राब्ता करे। जिस रोज से वो आई थी सेलफोन यूं ही बैग में बंद पड़ा था। कई बार हिम्मत भी की लेकिन हर बार हौसला हार जाती। शिद्दत एहसास माने था, शुजा से झिझक का, और फिर ये एहसास भी था कि वो अब किसी की पाबंद है, चाहे ये उसकी रजा और खुशनुदी के बगैर बांधा गया रिश्ता है। हाँ, अब वो शुजा की भी नहीं रही थी और यही ख्याल उसे रुलाता था। मान फजा में गूंज उठने वाली चीख की आवाज पर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। चंद लम्हों बाद ये आवाज दोबारा उभरी थी और बेसाख्ता धड़क उठने वाले दिल पर हाथ रखती सहम कर बिस्तर में दुबक गई। दिल था कि सीने की दीवारों को तोड़कर बाहर आने को बेताब था। अगले चंद लम्हों में अजीब बेहंगम सा शोर भी माहौल का हिस्सा बन गया। ज़ैनब को महसूस हुआ जैसे बहुत से लोग ऊंची आवाज में तेज तेज कुछ बोल रहे हों। घरों के दरवाजे खुलने की आवाज भी बहुत शोर पैदा कर रही थी। ज़ैनब की बिखरती धड़कनें कुछ और मुंतशिर हुईं। आयशा उठो प्लीज, देखो बाहर कैसा शोर है, मुझे डर लग रहा है। वो मजीद एसाब पर छा जाने वाले खौफ समेत दुबकी नहीं रह सकी। कुछ फासले पर बेखबर सोई आयशा को झंझोड़ कर जगा डाला। क्या हुआ? आयशा गहरी नींद से बदहवासी के आलम में बेदार हुई थी। सरासीमगी से बोली, वो बाहर कोई है, उसने लरसी आवाज में मुख्तसरन बताया। तभी फिजा में एक बार फिर फायरिंग की तड़तड़ाहट गूंज उठी। ओह, लगता है फिर डाका पड़ गया, चोर घुस गए हैं पिंड में। आयशा ने जोर से कहते हुए उठकर लाइट ऑन कर दी। चोरों का नाम सुनते ही ज़ैनब के हलक में कांटे हो गए। धड़कनें मामूल से हटकर खतरनाक हद तक तेज हो गईं। आयशा उस पर ध्यान दिए बिना मोहब्बत भरे अंदाज में बाहर की जानिब गई तो ज़ैनब ने सरस से बढ़कर उसकी कलाई दबोचने के अंदाज में जकड़ने के बाद झटके से उसे अपनी जानिब घसीट लिया। मुझे तन्हा मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। आवाज की लर्जिश पर काबू पाने के बावजूद कामयाबी नहीं हुई थी। आयशा ने पलटकर उसकी खौफ से फैली निगाहों में देखा और नरमी से झिंझलाकर रह गई। ओफ, वो भरजाई, डरो नहीं, ऐसा तो साल में एक दो बार जरूर होता है, लेकिन हमारे गांव के जवान बहुत जीदार और बहादुर हैं। उन लुटेरों का मर्दाना वार मुकाबला करते हैं, जब भी तो हर बार ही बहुत थोड़ा नुकसान होता है पिंड का, जबकि हमारे साथ के पिंड को तो बिल्कुल ही कंगाल कर जाते हैं। आयशा की तसल्ली देने का अपना अंदाज था, मगर ज़ैनब का खौफ ऐसा नहीं था कि इतनी सी तसल्ली के बाद दुमदुमा के भाग जाता। जब भी उसका हाथ कुछ मजीद सख्ती से जकड़ती हुई बोली थी, कुछ भी हो, बस तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। आयशा ने यूं ही सर हिला दिया, फिर उसका हाथ पकड़े उठकर आंगन में आ गई, जहां सहन की इकलौती लाइट इतने बड़े आंगन के मुहीब अंधेरे को निगलने में बुरी तरह नाकाम होती दिखाई दे रही थी। अम्मा, भाभो और मियाँ जी वहीं आंगन में गर्म चादरें ओढ़े मुस्तरबाना अंदाज में खड़े थे। अम्मा, क्या गांव पर फिर हमला हो गया है? आयशा ने उनके मुतफक्किर चेहरों पर निगाह डालते हुए कपकपाती आवाज में पूछा तो अम्मा ने जवाब में कुछ कहने की बजाय महज सर हिलाकर तायीद की थी। फिर सर्दी और खौफ से झुरझुराती ज़ैनब के पास आ रुकी। पुत्र, तू क्यों बाहर आ गई इतनी ठंड में? जा अंदर जा मेरी धी। आयशा पुत्र, बहन को अंदर ले जा, तेरा वीर और पा गए हैं, बस अल्लाह सोना उनकी खैर करे। उन्होंने ज़ैनब के सर पर हाथ रखकर कहा तो आयशा बुरी तरह से चौंक गई। क्या कहा अम्मा? वीर जी चला गया? पर तूने क्यों जाने दिया? अम्मा, उसे रोका क्यों नहीं? उसे वो जज्बाती है, फिर अब तो शादी की तारीख तक तय थी ना। रात के इस वक्त कुड़ियों को घर से बाहर नहीं निकालते, बुरा शगन है ये। आयशा ने गोया दहाई दी थी, लहजे में अजहद तशवीश भरी थी। कहाँ सुनता है पुत्र, वो बस निकल भागा।
उसे तो खुदा ऐसा मौका दे। अब तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और जो कर रहे हैं। ज़ैनब टुकर टुकर उनकी परेशान सूरतें देखती रही। वो कुछ हवास भागता थी और उनकी बातों को समझने से कासिर थी। तकरीबन 1 घंटा यूं ही गुजरा था और उस दौरान वक्फे से फायरिंग की आवाज़ फिजा में इर्ताश पैदा करती। दिल दहला तो अम्मा के चेहरे के तफक्कुर और तशवीश में कुछ और इजाफा हो जाता। बुलंद आवाज़ में दुआ मांगते उनकी आवाज़ आंसुओं की ज्यादती से भीग जाती। दफतन दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर ज़ैनब अपनी जगह जोर से उछल पड़ी। मियाँ जी छड़ी संभालते तेजी से लपके। मियाँ जी सब खैर है, मुझे भा ने भेजा है, डाकू भाग गए हैं, आप लोग बेफिक्र होकर सो जाएं, मैं यही बताने आया हूँ। दरवाजा खुलते ही आपा के शोहर ने तेजी से कहकर पलटना चाहा तो मियाँ जी ने बेसाख्ता पुकार दिया, पर पुत्र तेरा भा किधर है? मुईज भी, हम उनके बगैर कैसे सो जाएं? मियाँ जी के इस्तफसार पर इजलत का शिकार एक पल को तो तजब्जुब का शिकार हुए और फिर बोले, कुछ नहीं मियाँ जी, वो जरा मुईज को गोली लग गई है, भा उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं, गाँव के बाकी जवान भी साथ हैं। हाय रब्बा, मैं मर गई। अम्मा दिल पर हाथ रखे वहीं बेजान से अंदाज में बैठ गईं, जबकि बाकी सबके हवास भी मुख्तल हुए। आयशा की तो बाकायदा चीख निकल गई, पुत्र संभाल खुद को, कुछ नहीं हुआ, अपने शेर जवान को जरा सी गोली लगी है, अल्लाह के करम से ठीक होकर अपने पैरों पर चल कर आएगा। भा ने वहीं खड़े आयशा को तसल्ली दी, ठहर मैं तेरे साथ ही चलता हूँ। मियाँ जी की आवाज में खौफ के साथ लर्जिश भी थी। नहीं मियाँ जी, यहाँ नहीं, उसे तो शहर ले जाना है, वहां के डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। भा तो अपनी बात मुकम्मल करके तेजी से पलट गए। पीछे खदशात और तफक्कुरात में घिरे कितने ही दिल छोड़ गए थे। ज़ैनब अपनी जगह सख्ते के आलम में खड़ी रह गई। ये सच था कि उसने पूरी शिद्दतों से यहाँ से जान छूट जाने की दुआ की थी, मगर इस अंदाज में नहीं। अगर उसे कुछ हो गया। उसकी निगाहों में मुईज का शानदार मजबूत सरापा आन समाया तो घबरा कर अंदर चली गई। फिर बाकी सबकी तरह वो भी रात भर ना सो पाई। बिस्तर पर करवटें बदलते रात गुजारी। अम्मा के आंसू, आपा, भाभो और आयशा की सिसकियां उनकी मुईज से मोहब्बत गवाह थी। वो खुद अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। आयशा प्लीज संभालो खुद को, ठीक हो जाएंगे तुम्हारे भाई। उसने घुटनों में सर्दियां सिसकती हुई आयशा के शाने पर हाथ रखकर तसल्ली से नवाजा था। हाय भरजाई, मेरा तो दिल कांप रहा है ये सोचकर कहाँ गोली लगी होगी वीर को। पिंड के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, शहर ले जाना पड़ा। आयशा बुलंद आवाज से रोने लगी थी। शहर के अस्पताल। ज़ैनब का दिल पूरी कुव्वत से फैल कर सुकड़ा। उसे अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हुई। मेरे अल्लाह रहम कर, अगर उसे कुछ हो गया तो ये मुझे ही मनहूस समझेंगे। मुझ पे तो ये जमीन पहले ही तंग है। इस कठिन वक्त में भी उसे अगर ख्याल आया था तो अपना। दो पुरशोक लो देती गहरी निगाहें तसव्वुर में लहराई तो दिल घबरा सा गया। वो वहशत भरे अंदाज में उठकर कमरे में आ गई। अगली सुबह अम्मा, आपा और भाभो के साथ शहर चली गईं। उनके जाने से पहले भा का फोन आया था। अम्मा से बस इतना पता चल सका कि मुईज पहले से ठीक है। आयशा और सादिया के साथ वो भी बेकल हो रही थी। सारा दिन इसी इज़्तिराबी कैफियत में बिना कुछ खाए पिए बीता। मगरिब से कुछ देर पहले आपा और भाभो भा के साथ वापिस आई तो आयशा, जो जले पाँव की बिल्ली की तरह सारा दिन आंगन से बैरूनी दरवाजे तक बेचैन फिरती रही थी, लपक कर करीब आई। कैसा है वीर, कुछ हमारा भी ख्याल था या नहीं? वो तो जैसे फट पड़ी थी। ओफो, बता तो दिया था सुबह ही कि मुईज ठीक है, फिर काहे को बावली हुई जा रही हो? अम्मा ने लस्सी का गिलास एक ही सांस में खाली करने के बाद दुपट्टे के पल्लू से होंठों को नम किनारों को रगड़ कर साफ करते हुए जवाब दिया, शुक्र है रब सोने का। गोलियां बाजू पर लगी, मैं तो डर रही थी, पर तू फिक्र न कर, बहुत हौसले वाला है मेरा वीर, शेर बब्बर है। शेर इतना खून बहाकर भी हंसकर बात कर रहा था। कह रहा था उनसे कह देना परेशान ना हो, तुम्हारे लिए ही तो खास तसल्ली भिजवाई है। आपा ने आयशा की आंखों में फैलते आंसुओं को देखकर कहा तो आयशा के चेहरे पर वाज़ेह इत्मीनान झलका, मगर सिर्फ एक पल के लिए। जब भी बोली तो बच्चा रूठा रूठा सा था। जो भी है आपा, जब तक मैं वीर को अपनी आंखों से ना देख लूं मुझे तसल्ली होने वाली नहीं। सुन लो, कल भा के साथ मुझे भी अस्पताल जाना है। हाँ ठीक है, चली जाना। अभी तो रोटी ला, परेशानी में कुछ पकाया ही नहीं। अभी मुझे घर भी जाना है, बच्चे परेशान होंगे अपने मामे की खैरियत के लिए। आपा वहीं चारपाई पर लेटकर बोली तो आयशा ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए सर पर हाथ मारा। ओफो आपा, हमने भी कहाँ कुछ पकाया, तुमसे ज्यादा परेशानी थी हमें। चल रहने दे, बैठ तू, मैं हूं ना, कुछ करती हूँ। भाभो उसका हाथ पकड़कर आपा के साथ बिठाकर खुद रसोई में चली गई। तभी आपा की निगाह एक साइड पर खड़ी ज़ैनब की सिमत उठ गई। अरे भरजाई, तू क्यों इतनी चुप चुप है? शुक्र है रब का, अब तो वीर बिल्कुल ठीक है। ज़ैनब उस तसल्ली पर बजाय मुतमईन होने के गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी, जैसे मुनासिब अल्फाज ना सूझ रहे हों कि इस वक्त क्या कहे। आपा सादिया को पुकार कर टांगे दबाने का कहने लगी तो ज़ैनब को वहां से खिसकने का मौका मुयसर आ गया। जब भी तेजी से अपने कमरे की जानिब चली गई। आयशा की मिन्नत समाजत रायगा नहीं गई। कुछ भाभो
اور آپا نے بھی طرفداری کی تو بھا اسے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے اور وہ اپنے ہاتھ سے دیسی گھی میں پکا حلوہ معیز کے لیے بطور خاص ساتھ لے جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے پاس کھڑی زینب کو دیکھ کر پوری سنجیدگی سے کہا، چل بھرجائی، تجھے بھی ویر سے ملا لاؤں، آدھی بیماری تو تجھے دیکھ کر ہی بھاگ جائے گی دیور جی کی۔ عائشہ کی اس پرخلوص آفر پر بھابو لقمہ دیے بغیر نہ رہی، آنکھوں میں ناچتی شرارت اور لہجے کی معنی خیزی بھی زینب کے سرد احساسات پر کسی نرم گرم جذبے کو بیدار نہ کر سکے۔ سپاٹ چہرہ لیے یوں ہی کھڑی رہی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، ویر جلدی گھر آ جائے گا۔ آپا ہنس پڑی تھیں۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میرا ویر اتنی محبت کرتا ہے بھرجائی سے۔ کیوں بھرجائی؟ عائشہ نے چہک کر کہتے ہوئے اس سے رائے لی تو زینب کے اطراف میں تپش کا احساس گہرا ہو گیا۔ چہرے کی ناگواریت چھپاتی وہ تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ شرما گئی ہے، بھابو نے ہنستے ہوئے اپنی سمجھ کے مطابق نتیجہ خس کیا۔ بھا کی پکار پر عائشہ چادر سنبھالتی تیزی سے نکلی تھی۔ اس شام اندھیرا ہونے پر جب عائشہ بے انتہا سرشار سی لوٹی تو سیدھی اس کے پاس ہی آئی تھی۔ بھرجائی، تو نے سلام دعا بھی نہیں بھیجی ویر کو۔ وہ نہ صرف تیرا حال پوچھ رہا تھا بلکہ تیرے لیے سلام کے علاوہ یہ پھول بھی بھیجے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، میرا ویر تجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ سرخ مہکتے ہوئے ٹہنیوں سمیت گلابوں کا گلدستہ اس کی سمت بڑھاتے عائشہ سرگوشی کر رہی تھی اور زینب ساکن پلکوں سمیت یقین سے آری نگاہوں میں تحیر سمیٹے یک ٹک اسے دیکھتی چلی گئی۔ پتا ہے، جب میں نے ویر کو بتایا بھرجائی تیرے زخمی ہونے پر رو رہی تھی تو کتنا ہنسا۔ وہ کہہ رہا تھا، کچھ لفظ تسلی تو اسے میری طرف سے جا کر دے دو، باقی میں خود آ کر دے دوں گا۔ لیکن میں کب روئی تھی؟ حیرت سے بھری ناگواریت لیے اس نے نخوت سے کہا تو عائشہ نے بے تکلفی سے اس کے بازو پر چٹکی بھر لی تھی۔ چل اب جھوٹ نہ بول، میں نے خود تجھے چھپ کر روتے دیکھا۔ وہ ذرا سا ہنسی، پھر اس کے نزدیک سرک کر رازدارانہ لہجے میں سرگوشی کی۔ مجھے پتا ہے بھرجائی، تو شرما رہی ہے۔ بھلا سرکار سائیں بیمار ہو اور تکلیف میں مبتلا ہو تو دکھ سے آنسوؤں کا بہہ جانا کچھ اتنا عجب نہیں۔ تمہارا تو پھر نکاح ہوا ہے۔ جب مجھے پتا چلا تھا گلزار کو تاپ چڑھا ہے تو میں بھی بہت پریشان ہوئی تھی، روئی بھی تھی، بالکل تیری طرح چھپ چھپ کے۔ زینب اس کے چہرے پر بکھرتی دھنک رنگی برسات کو دیکھتی رہ گئی۔ گلزار زینب کا منگیتر ہے، یہاں مینشن کیا ہوا ہے۔ اس کے دل سے جیسے کوئی ہوک سی اٹھی تھی۔ کتنا خوش تھی عائشہ اپنی شادی سے، شاید اس لیے کہ اس طرح اسے بے خبری میں تو موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا تھا۔ بے بسی اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر چمکی تو عائشہ پر بھید کھل جانے کے خیال سے گھٹنوں میں سر جھکا لیا۔ دل جیسے غم سے پھٹنے کے قریب ہوا جا رہا تھا۔ معیز کے ٹھیک ہو کر آتے ہی گھر میں شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ گو کہ اس کے زخم پوری طرح بھرے نہیں تھے، بازوؤں پر ابھی بھی پٹیاں موجود تھیں۔ اماں اور بھابو کے علاوہ آپا بھی اس کی خوراک پر خاص توجہ دے رہی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ شادی سے ایک دن پہلے تک بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عائشہ اور اس کی رسم ایک ہی دن ادا ہونا تھی، شاید مہندی کی رسم، پتہ نہیں، یہاں پر مسنگ ہے۔ اس سے پہلے اماں نے معیز کی صحت یابی کی خوشی میں شکرانے کے طور پر محفل میلاد کا اہتمام کیا، کھانے کا اچھا سا انتظام کیا تھا۔ سارے کا سارا معیز نے ہی سنبھالا تھا۔ دن بھر وہ زینب کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو ترس گیا۔ اگلے دن مہندی تھی، وہ صبح سے نظر نہیں آئی تھی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ بھا اور بھا کے ساتھ کھانے کا انتظام کرواتا رہا تھا اور خاصا مصروف رہا تھا۔ کئی بار اس نے زینب کو دیکھنے کی شعوری کوشش بھی کی، مگر آپا اور بھابو اس کے سر پر تھیں اور اس کی کوشش کو بری طرح سے ناکام بنا دیا تھا۔ تب وہ صحیح معنوں میں جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ لیکن قسمت اس وقت اس پر مہربان ہو گئی جب بھابو نے زینب کے کپڑے پریس کر کے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے نہانے کا کہا۔ عائشہ تو کب کی نہا بھی چکی تھی۔ زینب کچھ کہے بنا شکستہ سے انداز میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، چونکہ گھر میں شادی کی تقریب تھی، اسی وجہ سے عام روٹین سے زیادہ لائٹس کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ جس وقت وہ غسل کے بعد پہلے جوڑے میں سفید تولیے میں بال لپیٹے پیلے جوڑے میں سفید تولیے میں بال لپیٹے باہر آئی، پہلا سامنا معیز سے ہو گیا، جو وائٹ کلف شدہ شلوار سوٹ پہنے پانی کی بڑی کین اٹھائے یقیناً باہر جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ٹھٹکا۔ تازہ غسل نے اس کے نازک دلکش پیکر کو مزید نکھار اور خوبصورتی بخشی تھی۔ تولیے کی کیس سے آزاد ہو کر سبھی چہرے کے گرد جھولتی اس کے دلکش روپ کو مزید لٹیں اس کے دلکش روپ کو مزید دلکشی سونپ چکی تھیں۔ وہ اطراف سے بیگانہ ہو کر سحر زندگی کے عالم میں بے خودسا اسے تکتا رہ گیا۔ زینب جو اسے یوں اپنی سمت تکتا پا کر لمحہ بھر کو گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی، اگلے ہی لمحے شدید قسم کی ناگواریت کے احساس میں گر گئی۔ واٹ نان سینس، یہ کیا طریقہ ہے؟ راستہ چھوڑے میرا، سرد پھنکارتی ہوئی آواز میں کہتی اسے حواسوں میں لوٹانے میں کامیاب رہی تھی، اور وہ بری طرح سے کھجل ہوتا بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔
आइए मैं आपको अंदर तक छोड़ दूं। उसके चेहरे से छलकती रौनक को महसूस किए बिना वो नरमी से बोला, गंभीर लहजा, बामायनी नरम निगाहें। कुछ भी तो जैनब को अच्छा ना लग रहा था। उसने एक तंजिया निगाह उस पर डाली और इतराफ में देखा। रंग बिरंगे बे इंतहा चेहरे, तबस्सुम लबों और आंखों में दिलचस्पी लिए उन्हीं की सिमत मुतवज्जा थे। नो थैंक्स, मैं खुद जा सकती हूँ, तिरछे काटदार लहजे में कहती वो तेज कदमों से आगे बढ़ गई, जबकि मुईज उसके इस अंदाज को समझने की कोशिश में उलझता चला गया था। निकाह तो हो चुका था। मुइज ने उसे तैयार करवाने के लिए शहर से ब्यूटिशियन बुलवाई थी। भाबो और आपा ही नहीं, गांव की खवातीन के अलावा मेहमान लड़कियां भी उसकी किस्मत पर रश कर रही थीं। आतशी और मरजंडा कलर के स्टाइलिश लिबास में मैचिंग के जेवरात, माहिर हाथों के मेकअप और फूलों के गहने, वो ऐसा रूप लाई थी कि देखने वाली निगाह खैरा हो जाती थी। खाने के बाद तस्वीरों का सिलसिला शुरू हुआ तो आपा मुइज को भी वहीं बुला लाई। ब्लैक पैंट कोट में जिस समय वो उसके मुकाबले आकर बैठा तो जैनब की तमाम मुर्दा हयात उसका लम्स पाते ही सनसनी के एहसास समेत चुकन्नी हो गई। खुद में सिमटते हुए वो गैर महसूस अंदाज में उससे फासले पर चली गई। किसी अनजान सी बेचैनी, इस्तराब उसकी रग रग में फैलता चला गया। एहसास पर छाया जमूद शदीद घबराहट और नागवारी में ढल गया। मुख्तलिफ रस्में थीं जिसमें उसे जबरदस्ती शरीक किया गया था, जबकि मुइज की खुशी का अंदाजा उसकी जिंदगी के एहसास से खिलते बुलंद कहकहों और बरजस्ता फिक्रों से बखूबी लगाया जा सकता था। चलो ये आखिरी रस्म है। वैसे तुम्हारी दुल्हन खास बेजार महसूस होने लगी है, शायद थक गई है। आपा ने खीर की प्लेट उनके दरमियान रखते हुए जैनब पर एक निगाह डालकर मुइज को मुखातिब किया तो मुइज को बराह रास्त उसे देखने का अच्छा मौका मुयस्सर आ गया था। तो आपको भी एहसास करना चाहिए, वो मुस्कुराहट लबों में दबाकर मायनी खेजी से बोला तो भाबो उसकी बात की गहराई तक पहुंचकर बेसाख्ता घूर कर बोली, हमें तो एहसास है, अब ये एहसास तुम्हें करना चाहिए, यानी उसकी नींद और थकन का। जवाब में वो जूम आईने से लबरेज फिक्रा था। वो हंस लेते हुए खुलकर हंसा। चलो भाई भरजाई, तुम शुरू करो। और सुनो मुइज, इसे तंग करने की जरूरत नहीं। आपा ने रस्म के आगाज से पहले मुइज को तंबीह करना जरूरी समझा। रस्म के इख्तिताम के साथ ही वो सबके रोकने के बावजूद उठ खड़ा हुआ। बैठो ना, कहाँ भाग रहे हो? आपा ने रोका। नहीं, अब चलता हूँ, उसने आहिस्तगी से कहकर जैनब को देखा जो सर झुकाए बिल्कुल खामोश थी। समझा करो झल्ली आपा, ये सिग्नल है कि इसकी वोटी को जल्द अज जल्द असल मुकाम पर पहुंचाने का। भाभो ने शौकी से कहा तो वहां दबी दबी हंसी बिखर गई। मुइज मुस्कुराहट छुपाता तेजी से निकल गया। उसे मुइज के कमरे में लाकर बिठाए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। मुसलसल बैठने से कमर तख्ता हो चुकी थी। भारी लिबास और जेवरात अलग एसाब को गुफ्त और बेजारी की कैफियत तारी कर रहे थे। आपा उसके लिए खाने की ट्रे लिए अंदर आई और थकन और बेजारी उसके हर अंदाज से आया थी। ओफो भाई, भाई ने तुम्हें अभी तक यूं ही बिठा रखा है। उन्होंने ट्रे साइड पर टिकाते हुए उसे देखकर सर झटका, फिर उसके तरफ में विराजमान लड़कियों को उठाते हुए बोली, चलो नहीं कुड़ियो, उठो सब सो जाके। वो सब एक एक करके बाहर गईं। तब आपा उसकी सिमत मुतवज्जा हुई थी। भरजाई, तो कपड़े बदल कर पुरस्कून हो जा। अरे हाँ, तुम्हें बतलाना तो याद ही नहीं रहा। दरअसल मुइज आज रात इस कमरे में नहीं आएगा। यहाँ का रवाज है। ये तुम खाना खाकर आराम करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। उनकी तवील बात ने जैनब के कोशीदा एसाब पर सुकून और तमानियत की फुहार डालकर गोया ताज़ा दम कर डाला। उसे तो इस रस्म बनाने वाले का मशकूर होना पड़ा था। जब भी खुशगवारियत में घिरी कुछ देर तक अपनी जगह बैठी रह गई। तुमने बुरा तो नहीं माना? आपा उसकी खामोशी से जाने क्या नतीजा अखज़ कर चुकी थी, आहिस्ता से बोली। ना, नहीं नहीं। जैनब ने बुरी तरह सटपटा कर बौखला कर यूं तेजी से गर्दन को नफी में हिलाया जैसे एक पल की भी ताखीर हुई तो यहाँ मुइज को वहां बुलाकर अजाले की कोशिश करने वाली हूँ। अच्छा, बिल्कुल सच्ची बात है। आपा कुछ मशकूक नजर आई, फिर हंसकर वजाहत करते हुए बोली, वीर बहुत नाराज हुआ है। वो कम ही किसी बात पर नाराज होता है, लेकिन भाभो बता रही थी कि इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया है। जेवरात उतारते जैनब के हाथ एक पल को इस जाविये पर ठटके। उसे एक पल को कमीनी सी खुशी महसूस हुई। जलता बुलता दिल जैसे इस बात को सुनकर ठंडे सुकून में चींटों की तरावट महसूस करने लगा। मगर ये लम्हाती एहसास था। आखिर कब तक ये बचत सिर्फ आज की रात, फिर वो अपने हर अमल में आज़ाद होगा। भला कौन रोक पाएगा? उसे ये ख्याल ही मुतवहश करने को काफ़ी था। जिस वक्त वो भारी लिबास से निजात हासिल करके हल्के फुल्के कपड़ों में बाहर आई, आपा लिहाफ खोलकर लेटने की कोशिश में थी। खाना जरूर खा लेना, उसे देखकर ताकीदन बोली। जैनब अनसुनी किए बाल सुलझाती रही। वलीमे की तकरीब के साथ ही आयशा की बारात का भी इंतजाम था। आमद के साथ ही मेहमानों की तादाद भी बढ़ गई थी। इतने बड़े घर में गोया तल धरने की जगह न रही थी। जैनब और आयशा दोनों डीप मैरून भारी काम के महंगे चोली के साथ स्टाइलिश अंदाज में दुपट्टा सेट किए खूब जच रही थी। जैनब पर तो कल से भी ज्यादा रूप चढ़ा था। जगमगाता हुआ उसका ये हुस्न हर निगाह में सताइश भर रहा था। जबकि मुइज हल्के आसमानी कलफ वाले शलवार सूट में
पा और भा के साथ हर काम में बराबर का शरीक था। आयशा की रुखसती के समय उसकी जब से सुर्ख होती आंखों और भींचे हुए लब देखकर ज़ैनब को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। आयशा की रुखसती होते ही गोया ये तकरीब भी इख्तिताम के मराहिल तक जा पहुंची तो दूरों और नज़दीक के मेहमान भी सरे शाम ही अपना सामान समेटते हुए रुखसत होने लगे। मुईज़ भा और बा दोनों के साथ साथ खासा मसरूफ रहा था। टेंट वगैरह उतरवाने, बर्तन धुलवा कर वापस भिजवाने तक शाम गहरी हो चुकी थी। जिस वक्त वो फारिग होकर अंदर आया, घर मेहमानों से तकरीबन खाली हो चुका था। जो मौजूद थे वो भी रुखसत चाह रहे थे। ज़ैनब भी वहीं आंगन में अम्मा, भाभो और आपा के साथ बैठी नजर आई। वो सबको नजरअंदाज करता हुआ अपने कमरे में चला गया। अलमारी से हैंगर किया हुआ शलवार सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गया। नहा कर अपने ध्यान में मगन तौलिए से बाल खुश करता बाहर निकला तो आपा और भाभो को ज़ैनब के साथ मौजूद देखकर एक पल को ठटका, मगर अगले ही पल निगाह का जाविया बदलकर कदम बढ़ाता ड्रेसिंग टेबल के सामने आन रुका। ज़ैनब पलंग के कोने पर यूं बैठी थी जैसे मौका मिलते ही भाग खड़ी होगी, जबकि भाभो उसके सर पर मौजूद हाथ में पकड़ी मेकअप किट उसकी सिमत बढ़ाए मेकअप संवारने पर इसरार कर रही थी। भाभो प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे भी अब इसकी क्या जरूरत है, तकरीब तो खत्म हो चुकी। मुईज़ के कमरे में मौजूदगी के बायस वो कतराते हुए धीमे लहजे में बोली, जबकि चेहरे पर मौजूद बेजारी और नागवारियत साफ देखी जा सकती थी, जिसे भाभो ने उसकी थकन से ही ताबीर करते हुए लहजे में मिठास भरकर फिर से इसरार किया था। जरूरत क्यों नहीं है मेरी चंदा, देवर जी ने तो तुम्हें ढंग से देखा तक नहीं, फिर कल रात का अजाला भी तो करना है। उनके लहजे की शोखी और शरारत झलक पड़ी थी, जबकि मुईज़ के सामने इस दर्जा खुली बात ने ज़ैनब के पसीने छुड़ा दिए थे। उसे अपना चेहरा भाप उड़ाता हुआ महसूस हुआ। कितनी देर तक तो वो कुछ बोल ही ना पाई। भाभी की जबरदस्ती थमाई गई किट उसके हाथ से छूटकर गोद में जा गिरी, जबकि मुईज़ यूं ही सपाट चेहरे समेत गले से तौलिया खींचकर फेंकता हुआ बाल बनाने लगा। उस काम के बाद उसने उजलत भरे अंदाज में पलंग के पास पड़े जूते पहने थे, फिर कफलिंग्स बंद करता हुआ बैग उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ा तो भाभो ज़ैनब से ध्यान हटाए मुखबर से उसकी हरकतों सुकनात को देख रही थी। बौखलाहट ज़दा अंदाज में सरस से बढ़कर उसके राह रोक ली। मुईज़ रुको, ये सब क्या है? आखिर अंदर का तमाम इश्तियाल लहजे में सिमट आया था। ये बैग है, क्या आपने इससे कबल सफरी बैग नहीं देखा? अंदाज अनूस दिल जलाकर खाकस्तर कर देने वाली तमानियत थी। पता है मुझे, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो इस वक्त? भाभो की आवाज़ मारे जिल्लाहट के अजीब सी हो गई। वापिस उसने इनकी झंझलाहट को नजरअंदाज करते हुए इख्तिसार से काम लिया तो भाभो को सही मायनों में मामले की संगीनी का एहसास हुआ। जब भी बोली तो लहजा यकसर बदला हुआ था। मुईज़, तुम खामखा एक मामूली बात को बढ़ा रहे हो। तहम्मुल से समझाना चाहा था, मगर मुईज़ के संजीदा और सपाट चेहरे पर एक नाफहम सी मुस्कुराहट झलक दिखलाकर गायब हो गई। मेरी छुट्टियां यहीं तक थीं, मजीद नहीं रुक सकता। अम्मा को भी बतला दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, ठहरे हुए लहजे में बोलता वो मजबूत कदम बढ़ाता निकलता चला गया था, जबकि भाभो सटपटाती घबराती उसे पुकारते हुए पीछे लपकी थी। ज़ैनब, जो अब तक बिल्कुल खामोश खड़ी थी, बगैर किसी तासुर के उनका मुकालमा सुन रही थी, धब से वापस बिस्तर पर बैठ गई। एक तौहीन आमेज एहसास बहुत सरस से उसके अंदर से उमड़ा था और पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले गया। मुईज़ का पुरनखुवत मगरूराना अंदाज उसे सरासर अपनी हित तक महसूस हुआ था। गो कि ये सच था कि वो खुद भी उससे कोई नया ताल्लुक बनाने पर जहनी तौर पर आमादा नहीं थी, मगर इस किस्म की नजरअंदाजी ही वो जिल्लत के मुतल्लिक भी नहीं सोचा था। उसे नींद आ रही थी। अजीब सी बेचैनी रगो पे में सरायत कर चुकी थी। शदीद सर्दी महसूस करने के बावजूद भी उसने लिहाफ अपने जिस्म से हटा दिया तो पूरे वजूद में सर्द लहरें दौड़ गईं। उसकी कड़कती सर्दी को बर्दाश्त करना उसके बस की बात नहीं थी। मजबूरन एक बार फिर लिहाफ ओढ़ना पड़ा, मगर अगले ही लम्हे वो बुरी तरह से चौंकती हुई उठकर बैठ गई। मशकूक से अंदाज में लिहाफ नाक के करीब ले जाकर सूंघा और बदलते हुए सरद से झटक दिया। परफ्यूम आफ्टर शेव लोशन की खुशबू मखसूस बू थी। वही स्मेल बारहा वार्डरोब खुलने पर मुईज़ के कपड़ों से उठती महसूस की थी। वो कोई मखसूस परफ्यूम इस्तेमाल करता था, जब भी उसके ज़ेरे इस्तेमाल हर शय में मखसूस महक रच बस गई थी तो उसकी बेचैनी की ये वजह थी। वो बिस्तर छोड़कर उठ गई। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? भाभो उसके लिए दूध का गिलास लाई थी और एकदम ही शर्मिंदा नजर आने लगी। ऐसा करो, तुम मुईज़ को खुद फोन कर लो। मैंने तुम्हारे बैग में मोबाइल देखा था, क्या वो ठीक नहीं चलता? गिलास उसके हाथ में थमाते हुए उन्होंने पुरखलूस सा मशवरा दिया, जबकि ज़ैनब बुरी तरह से गड़बड़ा सी गई थी, जब भी मुनासिब जवाब ना दे पाई। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर कर लो उससे बात। यहीं कहीं मुईज़ की डायरी पड़ी होगी, उसका फोन नंबर भी जरूर होगा। भाभो उसका गाल सहलाकर मुस्कुराते हुए पलटी तो ज़ैनब ने बेसाख्ता पुकार लिया, भाभो कहो क्या बात है? उसे झिझकते उलझते देखकर उन्होंने इसका हौसला बढ़ाया तो ज़ैनब होंठ कुचलते हुए बमुश्किल बोली थी, भाभो इस पलंग की कोई और बेडशीट और लिहाफ नहीं है। फितरी शर्म के बायस ना तो वो खुलकर उन्हें बता सकी और ना ही भाभो गैर भरे लहजे में बोली थी, लेकिन इस बिस्तर को क्या हुआ? अच्छा भला तो है।
جی اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ سر جھکائے انگلیاں مسلتی وہ بھابو کی الجھن کو مزید بڑھا گئی۔ زیبی کھل کر بتاؤ کیا بات ہے، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ بھابو نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی اور محبت سے کہا۔ زینب پوری آنکھیں وا کر کے کچھ دیر انہیں یوں ہی دیکھتی رہی، پھر حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے آہستگی سے بولی، بھابو دراصل اس بستر سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے، بس اس وجہ سے سو نہیں پا رہی۔ اور بھابو نے جو ہنسنا شروع کیا تو پھر اس ہنسی نے رکنے کا نام نہیں لیا، جبکہ زینب قدرے ناگواری سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پگلی تجھے معیز کے بستر سے خوشبو برداشت نہیں ہو رہی، اور جب وہ خود تیرے پاس ہوگا تو پھر کیا کرے گی؟ اف، وہ کانوں کی لوں تک سرخ پڑ گئی۔ ویسے میں تو کچھ اور ہی سوچی بیٹھی تھی کہ شاید تمہیں دیور جی کی یاد آ رہی ہے۔ بھابو کو اسے زج کرنے ستانے کا سنہرا موقع یاد آ رہا تھا، کیسے گنواتی اور اس وقت کو کوسنے لگی تھی جب ان سے یہ سب کہہ بیٹھی تھی۔ میں تمہیں نیا لحاف لا دیتی ہوں، بالکل انچوا بے فکر ہو کر استعمال کرنا۔ بھابو کو اس کی روکھی صورت پر آخر ترس آیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہنسی مذاق اور کام کاج میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چل سکا اور عشاء کی اذان ہونے لگی، تب آپا نے اٹھتے ہوئے اسے بھی ٹوک دیا۔ بھرجائی چھوڑ، یہ کام کل ہوتے رہیں گے، موسم چنگا نہیں ہے، پہلے روٹی کھا لے، بتی کا کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت بند ہو سکتی ہے۔ زینب جواب میں انکار کرنا چاہتی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اتنے بھاری پکوان کھائے تھے، مگر اس سے پہلے ہی دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے ان سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اللہ خیر کرے، یہ اس وقت کون آ گیا؟ آپا ہول کر کہتی دروازہ کھولنے چلی گئیں۔ واپس آئیں تو اماں برساتی اوڑے ساتھ تھی۔ ابھی زینب نے یوں غیر متوقع طور پر موجود پا کر حیران ہو ہی رہی تھی جب آپا نے چھوٹتے ہی دھماکہ کر ڈالا۔ چل بنو رانی، تیرا پردیسی پیا آ گیا، اماں اتنی برسات میں تجھے ہی لینے آئی ہیں، فٹافٹ چادر اوڑھ، سنگھار گھر جا کے کرتی رہنا۔ زینب کا دل دھک سے رہ گیا، فک چہرہ لیے وہ ٹکر ٹکر ان کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ بھرجائی کیا ہوا، خوشی سے سکتا ہو گیا ہے کیا؟ آپا کی بے وقت راگنی بھی اسے اس کیفیت سے نکالنے میں ناکام رہی۔ اٹھ جا دیے، موسم بھی چنگا نہیں ہے، اماں نے پچکار کر کہا تو وہ خود کو گھسیٹتی مرے مرے قدموں سمیت اٹھ کر یوں ہی چل پڑی۔ ہائے میں مر جاواں، اتنا شوق ہے پیا ملن کا، نہ سلام نہ دعا۔ وہ فکر اور تفشیش سے مرنے والی ہو رہی تھی، اس پر آپا کی مسلسل اٹکیلیاں سوچ رہی تھیں، آپا کو مسلسل اٹکیلیاں سوج رہی تھیں، جبکہ وہ گمسم سی کیفیت میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ ہمیشہ کی طرح ناگواری ہی محسوس کر لیتی۔ آپا اور جیرا نے خود بڑھ کر اسے گلے لگایا تو وہ یوں ہی اماں کے ساتھ ہو لی۔ بھاؤ نے گھر تک چھوڑنے آئے تھے۔ اس گرجتے موسم میں وہ اندھیری گلیوں میں کچے اونچے نیچے راستوں پر کئی بار وہاں پھسل کر گرتے ہوئے بچی۔ گھر تک پہنچی تو وہ بارش اور کیچڑ سے اچھی خاصی حالت خراب کر چکی تھی۔ بھاؤ نے دروازے پر ہی چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ اس کا پہلا سامنا ہی بھابو سے ہوا، اسے دیکھتے ہی کھلے بازوؤں میں لے کر زور سے ہنس پڑی۔ بھائی پچھلی بار دیور جی نے اپنے خطرناک تیوروں سے ہمیں ڈرا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس بار اسے خفا ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ حالانکہ موڈ تو خاصا بحال ہے، لیکن کچھ پتہ بھی تو نہیں چلتا نا ان مردوں کا۔ ویسے اب اسے خوش کرنا تمہاری ذمہ داری، ہم نے تو اپنا فرض نبھا دیا۔ بھابو سے بازوؤں کے حلقے سے آزاد کرتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر ہنسی تو زینب کو اپنی پیشانی سلگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چہرے پر الگ ضبط کی سرخی نے تمتماہٹ پیدا کر دی۔ میں نے ہی اماں سے تمہیں لانے کا کہا تھا، اچھا کیا نا؟ اب وہ شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی تائید چاہ رہی تھیں جو اسے مر کے بھی گوارا نہ ہوتی۔ اوفو بھائی، تم خواہ مخواہ دیر کیوں کر رہی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں، اور ہاں کوئی ڈھنگ کا سوٹ پہننا اور اچھے طریقے سے تیار ہونا۔ بھابو نے اسے کمرے کی جانب دھکیلا، تب وہ من بھر کے قدموں سمیت دروازے پر آ رکی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑی بے چینی اور اضطراب پر قابو پاتی حوصلوں کو مجتمع کرتی رہی، پھر کچھ ٹھان کر دل کڑا کرتی ہوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ نکاح اٹھا کر اسے دیکھے بنا سپاٹ چہرہ لیے الماری کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پلنگ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز کسی کتاب کے مطالعے میں وہ مگن تھا۔ آہٹ پر نگاہ اٹھائی اور اسے سامنے پا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ آپ تو وہاں آپا کے ہاں تھیں، اتنی رات خراب موسم میں واپس آئی ہیں، خیریت؟ اور زینب جو پہلے ہی بھنائی جا رہی تھی، اس درجہ بے نیازی کے مظاہرے نے پچھلی بار کی اہانت کا احساس بھی جیسے بیدار کر ڈالا۔ بھڑک کر مڑی اور سرد پھنکارتی ہوئی آواز میں جتا کر بولی، خود سے نہیں آئی، لائی گئی ہوں، اور وہ بھی زبردستی۔ انتہائی کاٹدار نظروں میں موجود تلخی نے اس کو معیز کو ٹھٹکا کر رکھ دیا، جبکہ وہ انگارے چبا کر ایک بار پھر پلٹ کر کپڑے بے ترتیب کرتی، بھابھی کی ہدایت کو پسے پوچھ ڈالتی کوئی انتہائی سادہ سا سوٹ ڈھونڈنے لگی۔ پورا وجود جیسے غم و غصے کی آگ میں بھڑک رہا تھا۔ معیز نے حیرت بھری نگاہ سمیت اس کا یہ جلا کٹا انداز ملاحظہ کیا۔ بھیگے ہوئے لباس میں اس کا دلکش ترشا ہوا پیکر تمام تر حشر سامانیوں سمیت سامنے موجود تھا۔ اس نے تو عام سے انداز میں سادہ سا سوال کیا تھا، خبر نہیں تھی کہ وہ یوں پھاڑ کھانے کو دوڑے گی۔ کچھ لمحوں تک وہ یوں ہی متحیر سا اس کی نازک پشت پر ناگن جیسی چوٹی کو دیکھتا رہا، پھر کتاب بند کر کے اٹھتا ہوا عین اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ زبردستی کیوں؟ آپ کو تو باخوشی آنا چاہیے تھا۔ آف کورس میں اتنے دنوں بعد آیا ہوں، اور پھر ایک طرح سے ہماری گولڈن نائٹ ہی
तो है, नई जिंदगी की शुरुआत इतनी बेजारी और तलखी से तो नहीं होनी चाहिए। जैनब का हाथ इस जाविये पे साकिन रह गया। सांसों की तपिश गर्दन पर महसूस करते ही वो दहशत के हिसार में गिरती जहां की तहां रह गई। ये तो गुमान तक न था। कमरे में मौजूद शख्स को तमाम तर इस्तेहकाक था और अपने हर अमल पर वो हक पे और जायज समझा जाता। अम्मा आपको लेकर ना पहुंचती तो मैं खुद जाकर आपको ले आता। ये जुदाइयां ही तो अजाब ही बन गई थीं कि मुझे वापस लौटना पड़ा। सरगोशी से जरा बुलंद गंभीर लहजा उसके हवास मुख्तल करने को काफी था कि उसकी मजीद पेशरफ ने उसके चक्के छुड़ाकर रख दिए। वो जरा सा उस पर झुका था और एक बाजू उसकी कमर के गिर्द माइल किए दूसरा गर्दन में डालकर रुख अपनी जानिब फेरता वो उस गंभीर लहजे के पूरा सर तासुर में जकड़ता जा रहा था। अंदाज में दिलरुबी और लम्स की शिद्दत में भरपूर इस्तेहकाक बोल रहा था। जैनब हैरत और वसवसे की ज्यादती से गंग उसके हसार में गुमसुम सी खड़ी थी। जेबी, मुझे उस रात वाकई बहुत गुस्सा आया था जब ये जल्दी वापस भी चला गया। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम अज कम आपके एहसासात की जरूर परवाह करनी चाहिए थी। जाने तब क्यों मैं ये सब कुछ फरामोश कर गया। आपने माइंड तो किया होगा। वो उसे यूं ही थामे पलंग तक ले आया। जैनब बिना किसी मुजाहमत के किसी मामूल की मानिंद उसके साथ चली आई थी। मान उसने उसकी गुमसुम कैफियत और गैर मामूली खामोशी को महसूस किया था। जैनब, आपने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ डियर। इसका मतलब आप मुझसे बहुत खफा हैं। उसका रुखसार सहलाकर दोस्ताना मुस्कुराहट समेत इस्तफसार करता हुआ वो उसका ये सख्ता तोड़ने में कामयाब रहा था। ना नहीं, मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया, बल्कि मैं तो यूं ही बहुत खुश हूँ। बस औरत पीछे की जानिब सिर कर फासला बढ़ाती उजलत भरे अंदाज में बेरब्त बोलकर यकीन दहानी करवाई। वो उसे अच्छी खासी डिस्टर्ब लगी। जब भी वो उसे बेड से उठते और फिर से अलमारी की तरफ जाते पुरशौक नजरों से देखता रहा, जबकि जैनब उस पर ध्यान दिए बिना अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गई। मुंह हाथ धोकर लाइट पर्पल लिबास में बाहर आई तो मुईज से मुकाबले के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार कर चुकी थी। ये बात तो तय थी कि उसके नजदीक मुईज की गुर्बत का तस्वुर भी नहीं था। जैनब, यहाँ आए। पलंग की बैग से टेक लगाए वो बेतकल्लुफ अंदाज में नीम दराज था। बुलावे का खास अंदाज जैनब के दिल से नाम निहाल बहादुरी को भगाकर खौफ की जड़ें गाड़ने लगा। बिलाशुबा वो हर लिहाज से उस पर भारी पड़ सकता था। ताकत के बलबूते पर अगर वो जबरदस्ती पर उतर आता तो वो भला कहाँ तक बचाव कर पाती। उसने चोर निगाह समेत एक देहाती माहौल में पले बढ़े मजबूत लंबे चौड़े वजूद को देखा तो अंदर ही अंदर खाइफ सी हो गई। जैनी प्लीज, वो फिर पुकार रहा था। जैनब का दिल बेहंगम से अंदाज में तेज तेज धड़कने लगा। चोटी में बल डालते हुए उसने गैर महसूस अंदाज में पेशानी पर उमड़ता पसीना साफ किया और जरा सी निगाह उठाई। उसे पूरी तवज्जो से अपनी सिम तख्ता पाकर सटपटाकर पलकों की झालरें गिरा दी। आप कैसी हैं? सुन रही हूँ। उसे जवाब में कुछ तो कहना था जान छुड़ाने को, जबकि मुइज उसके अंदाज में कतराहापन महसूस करके बेसाख्ता मुस्कुराया था। कह रही हो नाराज नहीं, जबकि तुम्हारा हर अंदाज साफ चुगली खा रहा है। भरपूर खफगी के बाल खुले रहने दो, अच्छे लग रहे हैं। तकल्लुफ की दीवारों को गिराता वो यकायक पटरी से उतर गया। जैनब का दिल धड़कना भूल गया। घबराहट जना अंदाज में उसने ढलकते आंचल को सरस से सर पर ढांप लिया। दफतन कमरे की फिजा में गूंज उठने वाले मुइज की जिंदगी से भरपूर कहकहे ने उसके रहे सहे हवास भी मुख्तल कर डाले। अम्मा कहा करती हैं जो औरत अपने शोहर के सामने भी अपने पर्दे और हया को कायम रखे, उसकी शराफत और पाकीज़गी पर शुबा नहीं किया जा सकता। और मुझे फख्र है कि मेरे नसीब में खुदा ने ऐसी ही औरत लिख दी। वो एक बार फिर अपनी जगह छोड़कर उसके पीछे आ खड़ा हुआ, जबकि जैनब को उसकी इस बात ने सुनकर डाला था। उसे अपने वजूद पर चूंटियों की हरकत महसूस हुई। क्या वो वाकई इस काबिल थी? कोई अंदर से बोला था। वो अपना वजूद बेजान होता महसूस करने लगी। शहर से आपके लिए ये रोनमाई का गिफ्ट खरीदा था, मगर दिल से मुतमईन नहीं हूँ, जाने तुम्हें पसंद भी आए या नहीं। वो उसका हाथ थामकर कलाई में गोल्ड का इंतहाई नफीस डिजाइन का नाजुक सा ब्रेसलेट पहनाता हुआ आहिस्तगी से बोला। फिर ब्रेसलेट लॉक करके उसकी कलाई पकड़कर तौसीफी निगाह से जायजा लिया और अगले ही लम्हे जरा सा झुककर उसके हाथ की पुष्ट को अपने दहकते लबों से छू लिया। जैनब, जो तब तक गुमसुम थी, इस जसारत पर जैसे चटक सी गई और दहल कर लग धक सी उसे देखती रह गई, जो बहुत इत्मीनान भरी मुस्कुराहट समेत उसका ये फक हुआ चेहरा देख रहा था। ये खुशबूदार लम्स पर महकती हुई कुर्बत जैनब के लिए जब्त का इम्तिहान बन गई, कड़ा इम्तिहान। और वो अपने दिल का क्या करती जो इन लम्हों में सरासीमगी की इंतहा को छूने लगा था। तो प्लीज छोड़े मुझे। धड़कनों में खतरनाक हद तक बर्पा हो जाने वाला शोर उसे पागल कर देने को काफी था। छोड़ दूं? अभी भी? हालांकि मैंने तो आपको जहनी तौर पर आमादगी के लिए बहुत वक्त दिया। उसकी इस दर्जा बेचारगी से की गई सदा पर वो चौंकता हुआ पत्थर सा होकर बोला और जैनब हर जानिब से रस्ते मजदूर पाकर बेबसी की इंतहाओं को छूती हाथों में चेहरा डांप कर बेसाख्ता रो दी तो शर्ट का बटन खोलता मुझे सही मायनों में बौखला कर रह गया। जैनब, जैनी प्लीज चुप हो जाओ। हुआ क्या है? कुछ बताओ भी। जानू, क्यों रो रही हो तुम? वो उसके दोनों हाथ कलाइयों से थामकर चेहरे से हटाता हुआ असहद तफशीर से बोला तो जैनब ने आंसुओं से जलतल होती आंखों और भीगी पलकों समेत उसे देखा। चेहरे पर घबराहट और तफक्कुर परेशानी लिए वो इतना नजदीक था कि जैनब का दिल घबराने लगा।
मेरी तबीयत ठीक नहीं, थक भी गई हूँ, प्लीज मुझे सोने दें। वो सूं सूं करती बोली तो मुइज का चेहरा भुस्सा गया। गहरा सांस खींचकर कुछ कहे बिना लब भेंचे कुछ फासले पे हो गया। बेहतर होता ज़ैनब कि आप मुझे उलझाने की बजाय अपने रवैये की वजाहत कर देती, क्योंकि बहरहाल इतना तो मैं भी जानता हूँ कि आपकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। एनीवेज मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, जबरदस्ती का तो सवाल ही नहीं। आप आराम करें, मेरे कमरे में मौजूदगी के बावजूद बेफिक्र होकर सो जाइए। भरपूर संजीदगी से ठहरे हुए लहजे में कहता वो उठकर अपनी जगह पर जाकर लेटते ही उसकी मौजूदगी से बेनियाज नजर आने लगा। ज़ैनब इतनी आसानी से जान छूट जाने पर कुछ बेयकीनी से बैठी की बैठी रह गई। सिंगल बेड पर उसके लंबे चौड़े वजूद के बाद इतनी जगह बमुश्किल ही बची थी कि वो सुगड़ सिमट कर ही लेट सकी, मगर उसका दिल अभी भी उसकी जानिब से किसी धड़के में मुबतला था। जब ये आहिस्तगी से पलंग से उठ गई, इस तरह घोड़े गधे बेचकर तो वो जिंदगी में कभी ना सोई होगी कि दिन के 10-11 बजे बजने को आए और उसकी आंख ही ना खुल सकी। भाभो ने बकायदा झंझोड़ कर जगाया, तब बमुश्किल आंखें खुल पाईं। ओफो, लगता है सारी रात जाकर गुजार दी। उसकी आंखों में हलकोरे लेता नींद का खुमार उन्हें शरारत पर उकसा गया। ज़ैनब सरहाने पड़ा दुपट्टा उठाकर ओढ़ती बुरी तरह से चौंक गई। वो तो नीचे दरी पर सोई थी, फिर यहाँ पलंग पर। उफ, इस सोच का जवाब उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट भर गया तो गोया वो भेद खुल जाने के खौफ से किसी के आने से कबल ही उसे दरी से पलंग पर मुंतकिल कर चुका था। इस गफलत भरी नींद को कोसती वो बिस्तर से उतर गई। कैसी रात गुजारी, इसका मतलब देवर जी ने सिर्फ मालूमात में इजाफा नहीं किया, उसकी कलाई में हार दिखाते ब्रेसलेट को निगाह की जद में रखे उसे लब बिस्तर पाकर भाभो लतीफ से पेराए में छेड़छाड़ करने लगी। जी, वो तो हलक तक घुलती कड़वाहट को अंदर उतारकर फकर यही कह सकी, इसका मतलब है खूब नाज उठवाए तुमने हमारे देवर जी से। भाभो हंसी। हाँ, और उठवाने भी चाहिए थे। वो मजीद चुप ना रह सकती, तल्खी से कहकर पलटी तो मुझसे टकराते टकराते बची, जो बहुत गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहा था। निगाह मिलने पर इत्मीनान से उसे यूं ही देखता हुआ भाभो को मुखातिब कर गया। भाभो, आपको भाग उड़ा रहे हैं। जबकि ज़ैनब यूं खज्जल हो गई थी कि आंखें उठाने के काबिल ना रही, भरम रखने के लिए रुक गई। गलत बयानी भी झूठ के जुमरे में आती है। मिसेज मुइज अहमद। भाभो को जाते ही जब वो भी कतरा कर निकल भागने को थी, मुइज ने पेशकदमी करते हुए उसकी कलाई पकड़कर अपने मुकाबिल करते हुए आंखों में झांक कर ठहरी हुई आवाज में जैसे बहुत कुछ बताया था। वो जैसे शर्म से कटकर रह गई, जबकि वो मजबूत हाथ उसके शानों पर जमाए हनूज उसके लहजो अंदाज पे गोया था। रात आपका जो पहला तासुर मुझ पर पड़ा, मैं आपको वैसा ही देखना चाहता हूँ। आप समझ रही हैं ना, अपनी शरीके हयात में किसी किस्म की कोई कजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। फिर जरूरत क्या है झूठ बोलने की। अपने ज़हन दिल को इस रिश्ते के लिए आमादा करें। इस मर्तबा मैंने आपके जज्बात का एहतराम किया है। आई होप कि आइंदा आपको अपना मुंतजिर पाऊंगा। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ओके। जैसे आया था वैसे ही पलट कर चला गया, जबकि ज़ैनब हवास बाख्ता बनी वैसी ही बैठी रह गई। वो चला गया था और 15-20 दिन हो जाने के बावजूद लौटकर नहीं आया। शादी को 2 माह होने को आए थे। आयशा के रुखसत हो जाने से घर के तमाम कामों का बोझ तनहा भाभो पर आन पड़ा था। फिर शोहर, बच्चों और अम्मा मियाँ जी की जिम्मेदारियां अलग, वो तो घन चक्कर ही बनी रहती थी। ऐसे में ज़ैनब को हाथ धरे बैठना अच्छा नहीं लगा। यूं वो घर के कामों में उनकी मदद करने लगी। भाभो का रवैया भी उसके साथ इंतहाई पुरखलूस और मोहब्बत से लबरेज था। अम्मा और मियाँ जी तो इंतहाई मुशफिक, बच्चे उससे मोहब्बत करते थे और बेहद एहतराम और मोहब्बत से पेश आते। शायद यही वजह थी कि वो इस जिंदगी को पूरी तरह कबूल ना करते हुए भी जैसे बहल गई थी। मुइज को गए जब 1 महीना हो गया और वो पलट कर भी ना आया, तो वो गैर महसूस अंदाज में सही, लेकिन उसकी कमी को अब महसूस करने लगी। ऐन मुमकिन था कि वो इस एहसास को शिद्दत से भी महसूस करती, अगरचा इन्हीं दिनों शुजा से उसका राब्ता ना हो जाता। भाभो को अपने मेके जरूरी कॉल करना थी और घर से बाहर फोन करने की इजाजत तो ना थी। तभी ज़ैनब को भूला बिसरा ख्याल आ गया मोबाइल के बारे में, जो हनूज यूं ही बैग में बंद पड़ा था। उस रोज शादी के बाद उसने पहली बार सेलफोन को इस्तेमाल किया। बैटरी चार्ज करने के बाद नंबर मिलाकर उसने सेलफोन भाभो के हवाले किया और खुद रसोई में आकर हांडी चढ़ाने लगी। भाभो भी बात करने के बाद अपने कामों में उलझ गईं। सेल पर होने वाली मुसलसल बीप से पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया। मान ख्याल आने पर वो तकरीबन दौड़ते कदमों कमरे में आई तो स्क्रीन पर शुजा का नंबर नाम समेत जगमगाता देखकर हैरत और खौफ से जामिद हो गई। कई सानियों तक दम साधे कॉल रिसीव ना करने के तजब्जुब में मुब्तला होकर उसने दिल से हारते हुए कांपते हाथों सेल उठाकर यस करने के बाद कान से लगा लिया। हेलो हेलो ज़ैनब, प्लीज मुझसे बात करें। कहाँ हैं आप? वो उससे भड़कर बेताब था, बेसाख्ता पुकारता चला गया। लहजा जिस कदर मुस्तरबाना था, अंदाज में उससे बढ़कर तड़प और शिद्दत थी, और ज़ैनब ने उस वक्त जाना था कि बाज लहजे किसी तौर प्यासी समातों को सराब करने की सलाहियत रखते हैं। शुजा के लहजे की तड़प ने भी उसे अपने हिसार में जकड़कर बेबस कर दिया था।
उसे सब कुछ भूला था, ये भी कि वो अब इसके लिए पराई है, ये भी कि वो इस वक्त अपने ससुराल में थी। उसे याद रहा तो फकत इतना कि जो शख्स उससे मुखातिब है उससे उसने टूटकर मोहब्बत की है। ज़ैनब, कहाँ चली गई हैं आप? मेरी बेकरारी से वाकिफ नहीं थी, फिर भी इतनी कड़ी आजमाइश, अगर कोई मर जाता ज़ैनी। जज्बात की शिद्दतों से टूटता बिखरता लहजा ज़ैनब को बखेर कर रख गया। गला आंसुओं से भीग गया, आंखों की नमी ढलक कर गालों पर उतर आई। कितना तरसती थी उसकी समातें उसके लहजे की प्यास के लिए। ज़ैनब कुछ ना बोली, वो जैसे इल्तिजा कर रहा था। ज़ैनब कुछ बोलने की कोशिश में बुरी तरह हार थी, सिलसिला काट के मजीद हाथ रखकर फपक कर रो पड़ी। गले में जैसे गम का फंदा सा लगा था, मगर शुजा जाने कितना बेकरार था, उसका सुराग मिलने पर मजीद बेकरार हो गया। ज़ैनब हर बार उसकी कॉल रिसीव करके खौफ और सरासीमगी के एहसास में घिर जाती। कई बार दिल ने सरजनिश की और समझाया, इस शख्स को आस दिलाना और मुइज़ को धोखा देना अब उसे जेब नहीं देता, मगर एक दिल था जो पूरे वजूद के सामने जरा सा लोथड़ा था। इस किस्म की तावीलों पर बेसाख्ता तड़प जाना, सिसक उठना, वो बेबसी हो जाती और हर उस तावील से नजरें चुरा लेती। कई बार शुजा को हकीकत बतलाना चाहिए, मगर हौसला ना हो सका। वो अपनी इस इकलौती खुशी को खोने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। शुजा की फोन कॉल से उसे कफस में ऐसे रोशनदान की मानिंद महसूस हुई थी जो ताज़ा हवा और रोशनी का बाइस होता है। आपा की नंद की शादी में आयशा भी एक दो रोज पहले ही चली आई तो घर में रौनक का एहसास बढ़ गया। वीर नहीं आया? उसने आते ही सवाल किया था। नहीं, पता नहीं क्यों, एक बार आया, वो भी एक रात के लिए, उसके बाद आया ही नहीं। एक ये हमारी भरजाई है, बुखलाई फिरती है, घर वाले के लिए मगर एहसास ही नहीं। आपा को मुइज़ पे बेहद गुस्सा था। भाबो, तू तो कहती थी वीर गांव का रास्ता कभी नहीं भूलेगा, फिर अब क्या है? आयशा ने तीखेपन से कहा तो जवाबन भाबो जोर से हंस पड़ी। भाई, ये सवाल मुझसे नहीं, अपनी भरजाई से करो। शायद इसे रूठा साजन बनाना नहीं आता। नई नई शादी और इसकी ये गफलत अजीब है, भाबो ने कहा तो ज़ैनब अंदर ही अंदर चोर सी बन गई। जब ही चुपके से वहां से उठ गई। भाबो और आपा को पूरा यकीन था कि मुइज़ शादी पर जरूर आएगा, मगर माइयों और उपटन की रस्म भी गुजर गई, वो नहीं आया। उस रात मेहंदी थी, वो सभी जोशो खरोश से तैयारियों में मगन थी। आयशा ने अपनी शादी का लहंगा पहना तो भाबो और आपा ज़ैनब के सर हो गई कि वो भी शादी का जोड़ा पहने। उसके हजार हीले बहाने और पहलू तही भी काम ना आ सकी। भाबो के सामने एक ना चल सकी, नतीजतन उसे भी लहंगा पहनना पड़ा। भाबो ने यहीं पे इक्तफा नहीं किया, मैचिंग के जेवरात और फूलों के गहने पहनाकर दम लिया। और वो जो लोगों के दरमियान अजूबा बन जाने के ख्याल से झिझक रही थी, वहां तकरीबन हर ब्याहता लड़की को ऐसे ही हुलिये में घूमते बच्चों को पहलुओं में लटकाए देखा तो खासी रिलैक्स हो गई। बहरहाल उन सबसे तो बेहतर लग रही थी। मेहंदी की रस्म की अदायगी हो रही थी जब उसके फोन पे बीप हुई। जब से शुजा ने फोन करना शुरू किया था, वो हर वक्त सेल फोन अपने पास ही रखने लगी थी। उसने मोहतात निगाहों समेत अतराफ का जायजा लिया। हर कोई तकरीबन जीरा की दिलचस्पी ले रहा था, हंसी मजाक और छेड़छाड़। इसके बावजूद वो निस्बतन अलग थलग गोशे में उठाई। हेलो ज़ैनब, शुजा की गंभीर आवाज़ उसकी समातों में रस घोल गई। ज़ैनब, प्लीज़ मेरे ज़ब्त को मजीद मत आजमाएं, मुझे बताइए आप कहाँ हैं, मैं फिलफोर आपसे मिलना चाहता हूँ। शुजा के इस नए तकाजे ने उसे लब भेजने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत मुश्किल है शुजा, मैं अपने जिन रिश्तेदारों के यहाँ हूँ वहाँ इस बात को बहुत गलत रंग में लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? जब मैं उन्हें अपनी आमद का मकसद बताऊंगा, मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, वो नरमी से झिंझला कर कहता। ज़ैनब का दिल धड़का गया। ये बात तो वो भुला ही बैठी थी कि शुजा ऐसी बात भी कर सकता है। वो तो अव्वल रोज से यही चाहता था और अब उसने घबराहट पर काबू पाकर कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले ही निगाह भाभो से मिलते मुइज़ से जा मिली। वो अपने ध्यान में था, यकीनन उसे नहीं देखा था, जबकि ज़ैनब का दिल उसे रूबरू पाकर सीने के अंदर बुरी तरह धड़क गया। रंगत फीकी पड़ी थी। मजीद एक भी लफ्ज कहे बिना वो सिलसिला मुनक़ता करती उजलत भरे अंदाज में सेलफोन पर्स में मुंतकिल करने के बाद दोनों हाथों से चेहरा थपथपाकर घबराहट के आसार मिटाती भाभो और आयशा की सिमत बढ़ गई। मुइज़ को देख लेने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया था। अगले चंद लम्हों के तवक्कुफ से मुइज़ बिल्कुल फ्रेश सा उन तक चला आया। पहली निगाह होश उड़ाती ज़ैनब पर पड़ी थी और अगले कई लम्हों तक हटने से इनकारी हो गई। अपनी जगह ठटकता हुआ वो मुतहय्यर सा उसे देखता रह गया। ज़ैनब का चेहरा उसकी निगाहों की गुस्ताखी को महसूस करके ही जाने किस जज्बे के तहत बेतहाशा सुर्ख हुआ। हम लोग भी तो यही हैं। आयशा की शौक चहकती हुई आवाज़ पर वो बैक वक्त जालत और खिसाहट का शिकार होता निगाह का जाविया बदलकर खुद से लिपट कर हंसती हुई आयशा की सिमत मुतवज्जा हो गया। आया तो वो भी ठहरने के इरादे से था कि भाभो ने बहुत इसरार से बुलवाया था, और जिस तरह आयशा की शादी में हर काम में पेश पेश रहे थे, वो भी इस हक को लौटाना चाहता था। मगर ज़ैनब का हवासों पे बिजली गिराता हुआ रूप उसके इरादे को डगमगा गया। ज़ैनब निगाह उठाए बगैर भी उसकी वालहाना निगाहों का भटकना और खुद पर ठहरना महसूस करती इस तरह का शिकार होती जा रही थी। मजीद 1 घंटे के बाद जब रस्म इख्तिताम पजीर हुई तो वो आयशा के साथ लिबास बदलने के इरादे से उठी तो मुइज़ भी भाभो से इजाज़त लेता हुआ साथ ही उठ खड़ा हो गया। रुको ना वीर, आज तो हमारे यहाँ रह जाओ।
जाने दो ना इसे। भाभो ने ठोका देकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया तो आपा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अच्छा अच्छा भाई जाओ, और भरजाई को भी साथ ले जाओ, तुम्हारे आराम का ख्याल करेगी। आपा ने सर झुकाए लब कुचलती जैनब को पकड़कर जरा सा उसकी सिमत दिखेला तो वो लड़खड़ा सी गई। दिल इस मंसूबा बंदी पर उछलकर हलक में आ गया। क्या ख्याल है, चले? वो पुरशौक निगाहें उस पर जमाकर बोला तो जैनब फक चेहरा और सहमी हुई मुतवहिश निगाहों समेत उसे तकती रह गई। मैं ये बातें नहीं करना चाहता, किस्मत की यावरी कि आप एक बार फिर दुल्हन बनी बनाई मिल गई हैं। उस पर झुककर बोझल सरगोशी उसकी समातों में अड़नेलता वो उसकी आंखों में झांककर मुस्कुराया तो जैनब पल भर में सर्द पड़ गई। उसका हशाश बिशाश इंतहाई शौक और शंग अंदाज जैनब की आवाज छीन कर ले गया। आने वाले वक्त सब्र करके ही उसकी सांसें अटकने लगी। उसके साथ घर तक तो आ गई थी कि इसके सिवा चारा नहीं था, मगर अब खुद को पूरी तरह उसके रहमो करम पर और उस पर घबराहट तारी हो रही थी। आपने वो ब्रेसलेट क्यों उतार दिया ज़ैनी, जो मैंने रोनमाई में गिफ्ट किया था? जी। वो होंक हो गई। कम ऑन ज़ैनी, तुम इस तरह घबरा रही हो मुझसे। मैं तो समझ रहा था कि तुम बहुत शिद्दतों से मेरी मुंतजिर होगी, मगर तुम्हारा डरा सहमा सा अंदाज मुझे मायूस कर रहा है। ज़ैनब की सांस उलझने लगी, हल्क गोया खुश्क हो गया। वो खुद को बुरी तरह जकड़ा हुआ महसूस करके रुहासी हो गई। दफतन उसके पर्सनल सेल पर होने वाली बीप ने उसके रहे सहे आवास भी छीन डाले। जहां तसलसल से होती बीप पर घबराहट और सरासीमगी का शिकार हुई। मुईज भी अच्छा खासा चौकन्ना हुआ, हैरानगी से इधर उधर देखने लगा। मेरे सेल फोन की बीप तो नहीं है, लेकिन आवाज से लग रहा है जैसे मोबाइल यहीं कहीं है। जी जी मेरा फोन है। उसने खुश्क लबों पर जुबान फेरकर बामुश्किल एक जुमला अदा किया। ओह, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके पास सेल फोन है, इसीलिए मैं आपके लिए इस मर्तबा सेल फोन ही। आप कॉल तो रिसीव करें प्लीज। मुईज हैरत का मुजाहिरा करता अपनी बात अधूरी छोड़कर उसकी तवज्जो मुसलसल बजते मोबाइल की सिमत मबजूल करा गया। इस बेवक्त की रागनी ने उसे खासा बदमजा कर दिया था, मगर जाहिर किए बगैर खुशदिली का मुजाहिरा कर गया, जबकि जैनब अपनी कोताही को कोसती रही थी। क्यों इस वक्त मोबाइल ऑफ नहीं किया? जाहिरी बात थी फोन शुजा के अलावा और किसी का भी नहीं था, और अगर मुईज पूछ लेता तो क्या जवाब पेश करती? जैनब, क्या बात है, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? कॉल रिसीव नहीं करना तो सेल फोन ऑफ कर दें। उसे सोचों में गुम देखकर मुईज ने टोकना जरूरी समझा। उसका ये गुरेज उसे अचंभे में मुब्तला करने वाला था। तभी वो जैसे हड़बड़ाकर गहरी नींद से जागी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने थूक निगलकर हलक तर्क करते हुए फीकी सी मुस्कुराहट समेत कहा और लरजीदा हाथ बढ़ाकर सेलफोन निकालकर कान से लगा लिया। मुईज बहुत गहरी निगाहों से उसका मुतगय्यर चेहरा देखता रहा। ओके, मैं फिर बात करूंगी। नहीं, हाँ है, मैंने कहा ना, मैं फिर बात करूंगी। उसने डांटने के अंदाज में कहा और अब की बार सेलफोन ऑफ करके बिस्तर पर डाल दिया। फिर मुईज को देखकर फीके से अंदाज में हंसी। मेरी दोस्त थी। मुईज ने महज हुनकारा भरा था, फिर दोनों हाथ सर के नीचे रखकर लेटता हुआ नीम दराज हो गया। अब आपका क्या इरादा है? जी। वो हकला गई। उसकी बेहद गहरी निगाहें खुद पर मुर्तकज पाकर वो सटपटाकर पलकों की लरजती बाड़ें आरस पर गिरा गई। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ आओ मेरे पास। उसने अपने पहलू में इशारा किया तो जैनब को ठंडे पसीने आने लगे। जैनब, उसने ठहरी हुई आवाज में पुकारा तो जैनब के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो इसकी बात मानती। सिरक कर दरमियानी फासला गिटाकर करीब आ गई। तुम आज भी ना खुश हो? क्या मसला है तुम्हारा ज़ैनी? उसकी आंखों से चमकते आंसुओं को पलकों पर उतरता महसूस करके वो झटके से उठकर बैठता हुआ तपे हुए लहजे में बोला। तो जैनब ने गायत दर्जे का सैम आंखों में भर के उसे देखा। उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात से दहल कर वो अगले ही लम्हे उसके बाजू पर चेहरा रखकर भुबक के रो पड़ी। मुझे गलत ना समझे मुईज, खुदा के लिए बस मुझे थोड़ा सा वक्त दें प्लीज। मुईज के चेहरे पर मौजूद सुर्खी कुछ गहरी हुई। वो लब भेंचे बिल्कुल खामोश अपने बाजू से लिपटती रोती सिसकती जैनब को सुर्ख आंखों से घूरता रहा। तुम समझती हो ये मसले का हल है? नहीं, इस तरह मसले हल नहीं हुआ करते। बेहतर है तुम अपना मसला मुझे बताओ। वो भींचे हुए कदरे नरम लहजे में बोला तो जैनब को हौसला हुआ। जब भी उससे अलग होकर हाथ की पूंछ से भीगा चेहरा पहुंचते हुए तेजी से बोली। कुछ भी नहीं, बस कहा ना, मुझे एडजस्टमेंट के लिए कुछ वक्त दरकार है, प्लीज दे देना। बड़ी बड़ी ख्वाबनाक आंखों में इल्तिजा भर के वो कुछ इस तरह बोली कि वो फौरन ही निगाह चुरा। मैं वादा करती हूँ अगली बार आप आएंगे तो मैं इस तरह आपको लटकाऊंगी नहीं। उसके हाथ पे अपना नाजुक हनाई हाथ रखकर उसने एक बार फिर गुजारिश की तो मुझे ठंडी सांस भर के रह गया। ठीक है, तुम्हारी खातिर ये भी सही। वो जबरदस्ती मुस्कुराया और अगले ही लम्हे उसका हाथ थपकर उठता हुआ बाहर चला गया तो जहरम के चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बिल्कुल ठीक, किस्मत अगर मुझे एक सुनहरा मौका दे रही है तो मैं इसे गंवाऊंगी नहीं। यहाँ मेरे लिए क्या है, धूल मिट्टी और कभी कभार इस शख्स की तवज्जो और मोहब्बत और इनाम में रीडिंग करते बच्चे, नहीं कभी नहीं। उसने बेसाख्ता
झुरझुरी ली। अगर अपना मकसद निकालने के लिए मैंने भी थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। वो इंतहाई सतहीपन से सोच रही थी। जीना की शादी में शिरकत करने के बाद मुईज एक बार फिर वापस लौट गया तो जैनब ने बेख्तियार सुख का सांस भरा और जिंदगी में पहली बार उसने खुद से शुजा को फोन कर डाला। उसे जो भी करना था जल्द अज जल्द करना था। मुईज के वापस आने से पहले वो अपनी किस्मत का फैसला करना चाहती थी। शुजा से बात करते हुए वो बहुत बेखौफी और जरूरत और एतमाद समेत हर किस्म के हालात उस पर वादे करने के बाद मुईज के मुतालिक भी अपनी नापसंदगी और ताल्लुक की नोयत को ढके छुपे अल्फाज में बयान कर दिया। दूसरी सिम शुजा इतने ढेर सारे इंकशाफात की जद में आकर गुमसुम रह गया। तब वो उसकी खामोशी को महसूस करने के बाद ही बोली थी, मैंने खुद को इसीलिए सेंध सेंध कर रखा था शुजा कि मुझे यहाँ नहीं रहना। आपका जो भी फैसला हो बहरहाल मुझे आगाह कर दीजिए। उसके बाद राब्ता मुंतका करके वो जले पाँव की बिल्ली की तरह बेकरार फिरती रही थी। उसने एक जुआ खेला था। जाने इसमें वक्त ने उसके लिए क्या छुपा रखा था, जीत या हार। उसी शाम शुजा का फोन उसके अंदर नई रूप हो गया था। वो उसका साथ देने पर आमादा हो गया था। उसके अल्फाज जैनब को हवाओं में उड़ा गए थे। मैं आपको लेने आ रहा हूँ जैनब, अपना एड्रेस दीजिए। आप शादी की बात करनी है, ये तो सिर्फ निकाह है। अगर आप किसी बच्चे की माँ भी बन जाती तब भी मैं आपको अपनाने में तामुल न करता। मेरे नज़दीक आपका याद रखना और मेरी मोहब्बत को कबूल कर लेना ही सब कुछ है। और वो सुरखरू हो गई थी। सरसारी के आलम में उसे एक पल की ताखीर किए बिना वहां का एड्रेस लिखवा दिया कि जो जुआ उसने खेला था उसमें उसे मात नहीं जीत हासिल हुई थी। इन दिनों उसके कदम जमीन पर नहीं टिकते थे। पूरा वजूद जैसे हल्का फुल्का होकर हवाओं के संग झूमता रहता था। वक्त बेवक्त गुनगुनाती और बात बेबात हंसती हुई जैनब को भाबू कभी चौंक कर तो कभी हैरान होकर देखती तो फिर उसके चेहरे पर खिलते रंगों की बरसात को देखकर मुस्कुरा देती। वो भी ऐसा ही दिन था जब बाबू ने अचानक उस पर गिरफ्त कर ली थी। सुनो, क्या जरूरी है कि तुम वो खबर पहले देवर जी को ही सुनाओ? आखिर हम भी तो तुम्हारे कुछ ना कुछ लगते हैं। कौन सी खबर? वो हैरान ही तो रह गई थी अपने पैर भारी हो जाने की। क्या? वो समझी नहीं थी। कुछ और हैरानगी से बोली तो भाभो ने उसके गले में बाजू हुमायल कर दिए थे। तुम माँ बनने वाली हो ना? वो करंट खाकर पीछे हुई थी। भाभो के अल्फाज उसे शदीद किस्म की नागवारियत में मुब्तला कर गए। बहुत दिक्कतों में उसने खुद को कोई सख्त बात कहने से बाज रखा था और तेज कदमों से चलती अपने कमरे में घुस गई। उसके बाद वो बहुत मोहतात हो गई थी। उसे अब हर पल शुजा का इंतजार रहने लगा था, मगर जाने क्या बात थी कि वो देर कर रहा था। हालांकि देर नहीं होना चाहिए थी। उसे हर पल मुईज का धड़का लगा रहता और दिन बीते चले गए। वो जब बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थी तब ही अचानक गैर मुतवक्का तौर पर आकर उसे हैरान कर गया। अभी कुछ देर पहले ही वो दोपहर का खाना खाकर आराम के घर से लेटी थी जब सादिया ने आकर उसे इतला दी, चाची शहर से आपके परौने आए हैं। पहले तो वो समझी नहीं और जब समझी तो बिगड़ती धड़कनों को संभालती क्रांचे भरती हुई बैठक तक आई थी। शुजा अपनी शहाना वजाहतों समेत उसका मुंतजिर था। उसे देखकर यकलख्त पूरे कद समेत खड़ा हो गया। आप आ गए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। शुजा, आपको देखकर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप सचमुच आ गए हैं। मुंह पर हाथ रखकर छलकती मुस्कुराहट को जब्त करती वो खुशी से बेकाबू कांपती आवाज में बोली तो शुजा के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट लम्हा भर को झलक दिखलाकर गायब हो गई। जताती हुई निगाह बराबर बैठी सायरा पर डालकर गोया तमस्कुर से हंसा था। क्यों सायरा? उसे निगाह चुराकर उठती हुई जैनब के करीब आ गई। अगर किसी की मौजूदगी का यकीन देख लेने के बाद भी हासिल ना हो पाए तो छू कर उस टूटते यकीन को ढारस पहुंचाना फायदेमंद रहता है। मिसिस जैनब, अजीब लहजा था सर्द काटदार चुपता हुआ। जैनब जो उसकी मौजूदगी से यकसर लाइलन थी यूं रूबरू पाकर ठटक गई। उस पर उसकी तंजिया गुफ्तगू, तुम भी आई हो? ओ सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अपनी खिफत को मिटाने को वो फक्त यही कह पाई थी जबकि सायरा के चेहरे पर उसकी बात के जवाब में जहर खुन फैल गया। शराब के पीछे भागते हुए तुम्हें धुंधले गुबार का एहसास भी नहीं रहा जो तुम्हें हर तरफ से घेर चुका है। यही गुबार तुम्हारी बसारतों को भी छीन लेगा। जहनी, अपनी बेख्तियारियों को लगाम दो वरना सिर्फ पछतावे तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगे। उसके गले लगी वो सरगोशी में बोलती गई। जैनब इस नसीहत को सरासर मुलामत समझते हुए अंदर तक खफा हो गई। उसे देखकर जो खुशी जोश बनकर अंदर उमड़ी थी भाप की सूरत उड़ने लगी। ऐसी कड़ी लान तान पर उसे अपनी पेशानी सुलगती हुई महसूस हुई। झटके से उससे अलग हुई, लब बेंचे फिर सरस से पलटी। जैनब प्लीज, शुजा ने बेताबाना पुकारा। तब वो ठटकी थी, फिर सर झटके हुए आहिस्तगी से बोली, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। और मजीद कुछ सुने बगैर तेजी से निकल गई। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ जैनी, और दोस्त अगर मुखलिस हो तो दोस्ती का हक ना निभाए तो दोस्त कहलाने का हकदार नहीं। मुझे एतराफ़ है तुम्हारे साथ जो हुआ वो कतई गैर मुतवक्का जरूर था, मगर फिर भी इसका यह मतलब हरगिज नहीं था जो तुमने किया। औरत में तो कुदरत ने हिम्मत और बहुत हौसला रखा है। तुम तो बहुत साफ गो थी, बहुत खालिस, अनछुई और चाहे जाने के काबिल। ये कोड तुम पर सूट नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारे किरदार पर हमेशा फख्र रहा। हर मौके पर मैंने तुम्हें मजबूत, बाकिरदार और मोहतात पाया।
तुम से कभी कोई लफ्जिश ना हुई? ज़ैनब उसके सामने सर झुकाए बैठी थी। सायरा के हाथ में उसकी शादी की तस्वीरों का एल्बम था जो भाबो ही उसे थमाकर अभी उठकर गई थी, जिसे देखते हुए वो बहुत नबे तुले लहजे में रसानिया से बात कर रही थी। दोपहर का खाना खाकर शुजा कुछ देर आराम की घर से लेट गया था। इरादा शाम को निकलने का था कि इस दौरान ज़ैनब भी अपनी तैयारी कर लेती। उनके दरमियान यही तय पाया था कि वो ज़ैनब को साथ ले जाएगा और फिर शहर जाकर मुईज़ पर खुला का केस दायर करके उसके लिए आज़ादी हासिल करने के बाद दोनों एक हो जाएंगे। उनकी इस मंसूबाबंदी के दौरान सायरा बिल्कुल खामोश और लाताल्लुक बैठी रही थी, मगर जैसे ही वो उठकर कमरे में आई वो उसके पीछे चली आई थी। तुम जानती हो मुईज़ शहर में क्या काम करता है? उसे यूं ही गुमसुम खामोश देखकर सायरा ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद सवाल किया। ज़ैनब ने यूं ही सर को नफी में जुम्बिश दे डाली। यकीनन तुमने जानने की कोशिश ही नहीं की होगी। तुम्हें यहाँ आए 3-4 महीने हो गए और मुझे देखो, मैंने चंद घंटों में जान लिया कि मुईज़ शहर में क्या करता है। हालांकि मेरा इससे कोई रिश्ता भी नहीं। उसने एक बार फिर जताया तो ज़ैनब का झुका सर कुछ और झुक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था सायरा ऐसे मौके पर इसे इस किस्म की बातें करके कौन सा बदला लेने की कोशिश कर रही है। 5 साल कबल मुईज़ ने MBA की डिग्री हासिल करके वहीं शहर में ऑफर होने पर जॉब कर ली थी। शहर में उसको कंपनी की तरफ से मिला हुआ घर है, बाइक है, और तुम्हें क्या चाहिए? उसने एक बार फिर मुलामत की। ज़ैनब के साहब को शदीद किस्म का झटका लगा। उसके लबो लहजे अंदाज़ो अतबार से कई बार उसके आला तालीम याफ्ता होने का गुमान गुजरता था, मगर उसने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया हो तब था। तुमने कभी गौर से मुईज़ को देखा? यकीनन नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम यकीनन ये हमाकत कभी न करती। इन तस्वीरों को देखकर ही मुझे उसकी वजाहत और खूबरूई का ठीक ठाक अंदाजा हो गया है। उस पर उसकी शानदार ड्रेसिंग, तुम्हारा तो बारहा उससे सामना हुआ होगा। रिश्ता ही ऐसा है, तुम्हारा उससे इसकी नेचर और गुफ्तगू के अंदाज से भी बेखबर ना होगी। बकौल तुम्हारे अभी तक अनछुई हो। तो मुझे ये बताओ, इसमें तुम्हारा क्या कमाल? ये तो सरासर उस शख्स की नफीस तबाह का एक और पहलू अयां हो रहा है कि यकीनन उसने तुम्हें तुम्हारी रजा के बगैर हासिल नहीं करना चाहा होगा। इस कदर दुरुस्त कियासराई पर ज़ैनब का चेहरा बेतहाशा सुर्ख होकर दहकने लगा। बेबसी, शर्म, घबराहट थी या खिफ़्फ़त व खुजालत के वो इस समय खुद से भी निगाह ना मिला पाई। जो कुछ भी सायरा ने कहा था गलत तो कुछ भी ना था, अलबत्ता वो ही जाने क्यों अक्ल की दुश्मन बन बैठी थी। शर्मिंदगी ऐसी कि उसका जी चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। बेबसी का एहसास आंखों में नमी भर गया। बहुत खुशनसीब हो ज़ैनब कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले दोनों मर्द ना सिर्फ तुम्हारे कदरदान हैं, बल्कि इंतहाई नरम तबीयत के होने के साथ साथ तुमसे बहुत मुखलिस भी हैं। वजह यकीनन तुमसे मोहब्बत है कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। जानती हो, शुजा ने मुझे तुम्हारे मुतालिक बताकर अपने साथ चलने का कहा तो पहले मुझे यकीन ही ना हो सका कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। शुजा की कस्में खाने के बावजूद मैं यकीन करने के लिए तैयार ना थी, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे दुख का एहसास मारे डाल रहा है। काश मैं शुजा के साथ ना आई होती। बिलाशुबा शुजा तुमसे मोहब्बत करता है। मैं जानती हूँ कि वो शादीशुदा होने के बावजूद तुमसे ब्याह करेगा, बहुत मोहब्बत भी करेगा तुमसे कि तुम बहुत दिक्कतों से उसे मिलोगी। मगर ज़ैनब, तुम्हें शायद एहसास नहीं है कि इस सब के बावजूद वो तुम्हें इज्जत नहीं दे सकेगा, ना कभी तुम्हारा एतबार करेगा। वो कभी ये यकीन करने को तैयार ना होगा कि तुम एक मर्द के साथ जायज़ हकूक के साथ रही और यूं ही उससे अनछुई मिल गई। यही है मर्द की नफ्सियात। इस मामले में वो ऐसा ही होता है, खुद जो कुछ मर्जी कर ले। औरत की छोटी सी छोटी खता को भी ना खुद भूलता है और ना उसे भूलने देता है। ज़ैनब, वो कभी ये नहीं मानेगा कि तुम हमेशा उसकी वफादार होगी। जिंदगी में कभी तुम मोहब्बत और वफा के एतबार की मेराज नहीं हासिल कर पाओगी। वो बड़े धड़ल्ले से तुम्हें ये निश्चय होता रहेगा कि आखिर तुम उसकी खातिर एक मर्द को ठुकरा कर उस तक आ सकती हो तो किसी और के लिए उसे भी बआसानी छोड़कर चली जाओगी। उसने तसल्सुल से बोलते हुए बगौर ज़ैनब का चेहरा देखा और गहरा तवील सांस खींचकर बोली, तुम्हें पता है ज़ैनब, औरत अगर महबूब से बेवफाई करे तो औरत ही रहती है, लेकिन शोहर से बेवफाई की मुर्तकब औरत इस मर्तबे से गिरकर गाली बन जाती है, गंदी गाली। सायरा ने उसके मुतगय्यर होते चेहरे पर निगाह डालकर अपनी बात पर जोर दिया और वहीं लेटे हुए आंखों पर बाजू रख लिया। ज़ैनब ने महसूस किया था कि उसके गाल भीग चुके हैं। उसके हाथ की पुछ से चेहरे को रगड़कर साफ करते हुए आंसू की धुंध को आंखों से हटाकर सायरा को देखा। उसे लगा जैसे वो मुसलसल बोलने से बहुत थक गई हो, और थक तो वो भी बहुत गई थी अपनी जात से दिल के सफर में। शाम ढल चुकी थी जिस वक्त भाबू के छोटे बेटे ने आकर शुजा का पैगाम दिया कि वो बैठक में उन्हें बुला रहा है। ज़ैनब हांडी का मसाला भून रही थी। भाबू को हांडी का ध्यान रखने का कहती उठकर अपने कमरे में आ गई। सायरा उसके पलंग पर हाथ पैर ढीले छोड़े बेखबरी की नींद सो रही थी। ज़ैनब ने झुककर पहले उसके बिखरे बाल समेटे, फिर गाल थपथपाते हुए आहिस्तगी से पुकारा। वो जरा सा किसमिस आकर आंखें खोलकर उसे देखने लगी। शुजा उठ गया? वो मैं इतनी देर तक सोती रही, हमें निकलते रात हो जाएगी। खिड़की के पार गहरी होती शाम पर तफक्कुर भरी नजर डालती वो तेजी से उठकर वॉशरूम में घुस गई। मुंह हाथ धोकर बाल समेटते हुए बाहर आई और उसे इन्हीं कपड़ों में इत्मीनान से बैठे देखकर लम्हा भर को ठटक गई। तुम अभी तक यूं ही बैठी हो? कब तैयार होगी? कब निकलेंगे? इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी।
नहीं सायरा, अभी देर नहीं हुई। देखो अभी दिन की रोशनी बाकी है और ये सारी रोशनी मैं अपने आंचल में भर लेना चाहती हूँ। इंतहाई मध्यम ठहरा हुआ लहजा, नम आंखें सायरा को चौंका के रख गईं। ज़ैनी वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और तहय्युर और इस्तेजाब की निगाहें समेत उसे देखा। शायद अपनी बात की इतनी जल्दी असर दिखा जाने की उम्मीद नहीं थी। ज़ैनब ने भीगती पलकें उठाकर उसे देखा और करीब आते ही उसके गले लग गई। थैंक यू सायरा, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे गंदी गाली बनने से बचा लिया। सही कहती हो तुम, ये एहसास तो मुझे होना ही था। अगर नुकसान के बाद होता तो उम्र भर की शर्मिंदगी और तासुब मेरा हमसफर बन जाता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी रहनुमाई ने मुझे गहरी अंधी खाई में गिरने से बचा लिया। वो फूट फूट के रोते हुए कहती गई, जबकि होले होले उसे थपकती सायरा के लबों पर आसूदगी भरी मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे खुशी है ज़ैनी कि तुम्हें बर वक्त होश आ गया। यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना भी तो नेकी है, और मुझे इस नेकी ने बहुत सरशार किया है। उसने उसे लिपटा लिया, फिर खुद से अलग करती हुई बोली थी, ये बताओ शुजा से क्या कहूँ। तब ज़ैनब का सर झुक गया, गले में आंसुओं का फंदा लगने लगा। कुछ भी कह देना, ऐसा कुछ भी सायरा जो उसे मुझसे मुतनफर कर डाले। कभी भूले से याद आऊं तो नफरत से मेरे ख्याल को झटक डाले। उसकी आवाज़ भराई तो लब भेंती खामोश हो गई। सायरा ने उसकी पेशानी चूमकर खुश रहने की दुआ से नवाजा और रुखसत हो गई। ज़ैनब कुछ देर वहीं खड़ी कुछ सोचती रही, फिर सेल फोन उठाकर मुईज़ का नंबर पुश किया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। उसने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा। अभी दिन की रोशनी बाकी है और मुझे इससे पहले पहले आपको मनाना है। हेलो। भारी दिलकश मर्दाना आवाज़ उसकी समातों में उतरकर दिल को अनोखे अंदाज में धड़का गई। मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। उसने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। ज़ैनब? वो चौंका था। हाँ बोलो। आप आते क्यों नहीं? मैं इंतज़ार कर रही हूँ, उसने हिम्मतों को मुजतमा करते हुए कहा। तो दूसरी जानिब लम्हा भर को खामोशी छा गई। मुईज़? जी जाने मुईज़, वो भरपूर मुसर्रत से गुनगुनाया तो लब काट कर रह गई। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, उसने आहिस्तगी से कहा, और मजीद कोई बात किए बगैर सिलसिला मुंतका कर डाला और चलती हुई बाहर आ गई। उसे यकीन था कि रात तक वो उसके सामने होगा। तुम्हारी सहेली अपने भाई के साथ चली भी गई, हालांकि मैंने खाने पर रोका था। भाभो उसे देखते ही बोली तो उसने गहरा सांस भरा था। इन्हें देर हो रही थी भाभो, और जाने वालों को रोकना हमाकत है। वह चूल्हे के करीब जा बैठी। कुर्बानी हमेशा औरत के नसीब में लिखी गई है, शायद इसीलिए औरत दिल मारकर जीने का हुनर जानती है। उसने राख कुरेदते हुए सोचा, गो के दिल में मोहब्बत की नारसाई के एहसास ने हशर बर्पा कर रखा था, मगर इस हशर से नजरें चुराए वो इस एहसास समेत मुतमईन थी कि वो औरत की अजमत की मेराज से गिरने से बच गई थी। दिल दरिया के तंदो तेज तूफान, और वो सही सालम बच निकली थी। रात के खाने के बाद वो अम्मा के बिस्तर दुरुस्त कर रही थी जब सादिया भागती हुई उससे लिपट गई। चाची, चाचू आ गए हैं। वो इसका दिल बहुत जोर से धड़का था। वो आएगा ये यकीन था, मगर इतनी जल्दी कि वो इसके इस्तकबाल की तैयारी भी ना कर पाई। वो वहां से निकलकर अपने कमरे की जानिब भाग गई कि अभी उसे उसके लिए खुद को संवारना भी तो था। ये स्टोरी भी कंप्लीट हो गई है। और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।